Once again, a very good afternoon, all of you. Today, we are in the day 2 session, and that will be discussed again by Amit Biswakarma for our alumni of Digboi College and a national awardee from President of India as a Best NSS Award last year, and who is actually preparing as a hard code for the civil service examination. And today is his second session that he's going to start with how to prepare civils as a strategy part 1. And as a part of the next day's schedule, I just want to just read out the other days left for the webinars. Is that on 19 it will be discussed at how to prepare civils strategy part 2. That will be covering the syllabus, the sources, and the previous year question papers, as well as again on 28th of 05 2021. He will discuss about how to prepare civils as a part of strategy part 3. Then it will be covering our papers as well as how to make the notes. And again on the 21st of May, he will be discussing about the 1 year study plan, how to prepare it as a kind of a daily routine with mental and physical status. And on the concluding day, that is on the Saturday, on 22nd of 05th 2021, he will be also discussing about solving the doubts after the interactions, and will also end up with a concluding session. So now over to Amit Biswakarma for the next session. And there's an announcement that instead of 5 p.m. Tomorrow, all the session will start at 5:30 for the session. So this is an information to you. I have already emailed you about the same of the timing also. So it is now over to Amit Biswakarma for the second day presentations. Thank you so much, sir. Sir, should we wait for some more minutes, or I can start, sir? Yes, I think we can wait. Yeah. Some students, For if they 5 want to discuss, we Yeah. can just get it out a kind of like the last year, the last session's discussion can be also carried out today. If there are some thoughts, they can directly ask questions. Yeah. So that we can carry it out for next 5 minutes more. Okay, then we will start today's session from 5:10. Okay, we are waiting for some other participants, and in this 5 minutes, you can ask questions actually regarding civil services. Okay. If you have any doubt regarding yesterday's class, or if you have any other thing to ask, please you can ask now for 5 minutes. Good evening, Amit sir. Yeah. Good evening, Taryang sir. Amit sir, my question is for you. And I have not only one question, but I have a series of questions for you. Okay. Regarding optional subjects. जैसे कि देखा जाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूपीएससी में ऑप्शनल का होता है, तो ऑप्शनल ये तो है कि कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि एक जगह एक मिनट today we will discuss about it, please. Next question. We will discuss about optional subject, everything about optional subject we are going to discuss. Please look at the schedule first and then ask question. Okay, we will discuss today, and after this session, if you have any doubt, then ask me. Okay, Praveen. Any other any other participant who want to ask question, please you can ask also, like Praveen. And there's another information I want to share to you all, that yesterday's complete session is going to be uploaded in the YouTube. Whatever there was a discussion, so you can also again listen it again. And today's session will be in the recording mode, and also will upload it in the YouTube. So the editing part is already over, so we'll be shortly uploading it also. There's an information to you. Those friends who are not attended yesterday's sessions, you are requested to please attend the first session when it is uploaded in the YouTube, please, because if you don't attend that session, you will not connect actually what I am talking. Okay, 2 minutes are left. Any question from your side? 66 participants are there. I am seeing on my screen. Yes, you are audible. Please tell your name. Naina Sekya. Okay, Naina. I wanted to ask, like, how can we keep motivated ourselves throughout the preparation? Sometimes we get ups and downs. Right. So how can we push ourselves to the goal? Yeah.
Actually, this particular doubt is addressed by me yesterday. I was talking about reason why you want to do something. Not only in civil services, actually in every field. If that why is clear to you, then automatically motivation will come. And actually, what happened? Actually we don't have that clarity in our mind that why we are doing that kind of thing, why we are going to be a civil servant, or why we are going to be a writer. That particular why is not clear to us. That's why that motivating factor actually comes actually. And it is also correct that we are humans, and we don't actually, we shouldn't behave like that robot. Ups and downs will come to our life, but if that why is clear to you, then I think that constant motivation will automatically come, right? And got it, Naina? Am I audible? Yes, thank you. Okay. You're audible. You're audible. Okay. Then it is 5:10 in my mobile, and we should start the session. Already we are 10 minutes late. 72 participants are there, and I am starting the session. We are not Right, late. sir? Actually, the participants were late. Yeah. So we're waiting for the That's what. participant to come out. Yeah. And yesterday also we started. We're on time. Hmm. If you see the time also in the recording part also. Anyway, Yeah. Yeah. now over to Amit Biswakarma to carry out your presentations. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So before my presentation, I want to share some thoughts to you actually about health. And you are seeing on your skin that health is not valued till sickness comes, right? So then, and this is the pandemic situation, and I hope you are taking care of yourself and your family. And I also talk about this yesterday also. And please, if health is there, then everything will come actually. तो हेल्थ नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम वो नहीं है. आप सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करिए, जिसका भी प्रिपेयर करिए, कोई मतलब नहीं अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो. हेल्थ और हेल्थ मीन्स ऐसा मत समझिएगा जो आपका हेल्थ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं. हेल्थ मीन्स फिजिकल प्लस मेंटल. ओके, तो दोनों का ध्यान रखिए. तो और अपने साथ साथ आपका फैमिली और सराउंडिंग का भी ध्यान रखिए, राइट. तो आज का हम लोग का एजेंडा है जे कैसे सिविल्स को प्रिपेयर किया जाए. कल को हम लोग डिस्कस किए हैं जे क्या क्या मिथ्स हैं सिविल्स का ऊपर, और हम लोग को क्यों सिविल ज्वाइन करना चाहिए. दैट हम जो बोल रहे हैं अभी, वाई शुड वी ज्वाइन सिविल सर्विसेज. तो आज थोड़ा टेक्निकल होने वाला है सेशन, तो प्लीज फोकस्ड रहिएगा, एकदम फोकस्ड. और ये बेसिक चीज सब जब आप लोग समझ जाएंगे सिविल्स का बारे में, तो आपका माइंड में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगा, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका लिए किसी मेंटर को और किसी सीनियर को किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को पता होगा. और सिविल्स का बारे में एक कहावत है जे क्या है जे आपको आपका मेंटर यहाँ पे कोई नहीं होता, आपका मेंटर खुद ही होते हैं आप सिविल्स में. तो अगर आप खुद का मेंटर कब खुद बन पाएंगे, जब आप सिविल्स का बारे में सब कुछ क्लियर होगा, एक एक चीज पता होगा. ठीक है, तो हम की कोशिश करेंगे जे जितना कंसाइज वे में जितना भी क्लियरिटी देना चाहिए और हम देने का कोशिश करेंगे. तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है जे आप लोग प्लीज फोकस रहिएगा इस सेशन में, पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि इसमें हम लोग पैटर्न का बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जामिनेशन का, और आपका कैसे, वो प्रवीण जो बोल रहा था जे कैसे हम लोग आपका ऑप्शनल चूज करें, क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब का बारे में डिस्कस करेंगे. और हमको पता है जे बहुत लोगों को यहाँ पे ये सब जो डिस्कस करेंगे हम अभी पैटर्न का बारे में और कैसे ऑप्शनल को चूज करना है उसका बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा. तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग को पता भी है तभी भी आप लोग ये मत सुने. तो क्या होता है ना, हम लोग का पता तो होता है लेकिन क्लियरिटी नहीं होता है माइंड पे. तो जैसे कि हम लोग सब लोग पार्लियामेंट का बारे में पढ़े होंगे, लेकिन पार्लियामेंट का बारे में हम लोग
हम अगर पूछेंगे आपको, हम गारंटी देके बोलते हैं कि आप लोग नहीं सकेंगे। ऐसा 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 जो क्यों? बिकॉज हम लोग का क्लियरिटी नहीं है। हम पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किए हुए हैं वो, तभी भी वो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक्स क्वेश्चन उसको पता नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग का माइंड पे क्लियरिटी होता नहीं है। तो हम देना चाहते हैं आपको क्लियरिटी। ओके, तो आप लोग प्लीज 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 फोकस्ड रहिएगा, ठीक है? तो और ये जो बोले, जो भी हमारा सेशन पहला सेशन नहीं देखे, प्लीज जब भी यूट्यूब पे अपलोड हो तब आप लोग देख लीजिएगा, तभी कनेक्ट कर पाइएगा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। और प्लीज लाइव अगर है आप लोग तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे, हम लोग इंटरेक्शन भी करते हैं कल को, जैसे कि पता चला हम लोग, ठीक है? तो ये एक हम बनाए हैं जे हम आपको बोले थे जे हम लोग कौन है, हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है। और वन फॉर 1 वीक, तो आप फिर 1 वीक के बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है कि नहीं, क्योंकि 1 वीक में हम लोग को पता चल जाएगा क्या माने एक्चुअली यूपीएससी क्या होता है। तो 1 वीक के लिए एज्यूम कर लीजिए जे आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है हमारा साथ, और हम लोग यूपीएससी का बारे में इन डेप्थ इन डिटेल जानेंगे। वो जो कल को आइसबर्ग दिखाया गया था आप लोग को, हम लोग आइसबर्ग का जो नीचे का पोर्शन है उसको देखेंगे। ओके, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? क्लियरिटी चाहिए यूपीएससी के बारे में। ओके, ऐसे बनाए थे हम ऐसे ही करते रहते कुछ कुछ। ओके, तो पहले अभी 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 फोकस्ड हो जाइए प्लीज। तो हम लोग को यूपीएससी के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज जानना है, बेसिक चीज, बहुत बेसिक चीज। और और हम गारंटी देते हैं कि बहुत लोगों को इसका बारे में पता नहीं होगा। तो एकदम हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। प्लीज बी पेशेंट, पेशेंट पेशेंट रखिए, एकदम पेशेंट रखिए। हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज पैटर्न के बारे में, ठीक है? और in this 1 week you have all clarity about यूपीएससी एग्जाम। और हमको पता है कि सब लोग यूपीएससी नहीं देने वाले हैं, कोई कोई ऐसा है ऐसे हमको सुनने आए हैं, और कोई कोई ऐसा होगा ऐसे मैंने दूसरा कुछ बनना है लेकिन यूपीएससी का बारे में पता करना है। तो आप लोग प्लीज ध्यान, तो वो लोग भी प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग मैंने हम बोले जो यूपीएससी के बारे में बहुत लोग को गलत पता है। तो आप लोग को अगर अवेयरनेस रहेगा जो एक्चुअली एग्जाम कैसा होता है, टेक्निकल बात जब पता रहेगा, तब आप लोग को क्या होगा, दूसरों को बताने में आसानी होगा। तो दूसरा लोग जब बोलेंगे जे यूपीएससी ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप लोग बोलेंगे उसको सुधार देंगे। तो आप लोग भी, सब लोग यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सम बेसिक चीज अभी 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 बेसिक चीज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो मिनिमम एज कितना होता है हम लोग के, कब एग्जाम दे सकते हैं? मिनिमम एज 21 होता है, ठीक है? ऐसा मत समझिए जे आप लोग को एकदम पूरा बहुत मैंने मेच्योर्ड होना पड़ेगा, ऐसा एकदम बहुत बड़ा आदमी होना पड़ेगा, 25 26 27 में होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम एज आपका 21 होना पड़ेगा। और हम लोग इंटरप्रेट भी करेंगे क्यों रखा होगा यूपीएससी मिनिमम एज 21, ठीक है? हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए जे आप लोग का मिनिमम एज 21 हो गया तो आप लोग दे सकते हैं एग्जाम, ये ठीक है? और भी टेक्निकल है, जैसे कि आप लोग का मिनिमम एज जो 21 कैलकुलेट होगा, तो अगस्त को लेके कैलकुलेट उसको। अभी ये बात मत में ध्यान में रखिए, सिर्फ ये ध्यान में रखिए जे 21 इज द मिनिमम एज फॉर गिविंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और अब एक चीज देखिए, अभी 21 क्यों रखा गया है इसमें? क्योंकि वो लोग को पता है जी 21 इज द सफिशियंट एज फॉर हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो 21 हो गया तो आप लोग एलिजिबल है इसका लिए। तो और आप ये 21 एज है आपका, और 21 एज में आपको मैक्सिमम कितना पता होगा, कितना कितना पढ़ लेंगे आप लोग? तो आप जितना भी पता होगा वो लिमिटेड ही होगा, ठीक है? और यूपीएससी को भी पता है जे ये जो बच्चा है 21 ईयर वाला, वो उसको लिमिटेड नॉलेज ही पता है। लेकिन तभी भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसको अगर हम पीएचडी होल्डर को भी रिसर्च किया आदमी को भी दे दे, वो नहीं सकेगा। क्यों नहीं सकेगा? हम बोल रहे हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू पीएचडी होल्डर्स एंड जो पीएचडी स्कॉलर्स है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्यों नहीं सकेगा? हम बोल रहे हैं जे क्योंकि 20 उसको यूपीएससी को भी पता है जे आपका 21 ईयर जो एज है उसको वो जो लड़का और लड़की है उसको लिमिटेड नॉलेज होगा, ऑब्वियसली लिमिटेड नॉलेज होगा। 21 ईयर में कितना पढ़ लेगा वो? लेकिन तभी भी उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जे जो बड़ा से बड़ा आदमी भी हिचकिचाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये इसलिए किया जाता है यूपीएससी से, क्योंकि आप इसका सर्विस का कंडीशन सब देखिए, कल को दिखाया गया था आपको फोटो का
उससे। जे सर्विस का कंडीशन देखिए, इतना टफ है सर्विस का कंडीशन। तो आपको क्या 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 यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, जे आप ये करे जे मिनिमम रिसोर्सेस में आप मैक्सिमम ऑप्टिमम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो आप डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, तो आपका पास मिनिमम रिसोर्सेस ही रहेगा, मिनिमम आपका टीम मेंबर ही रहेगा, उससे आपको काम कराना है, उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो मिनिमम आपको यही सिखाया जाता है प्रिपरेशन का टाइम से ही, जे मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। तो इसलिए आपका लिमिटेड नॉलेज है, उस यूपीएससी को भी पता है, तभी भी वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है जो जिसका लिए शायद आपका मास्टर्स का ग्रेजुएशन का भी आपका नॉलेज जरूरी हो, क्योंकि ये चाहता है कि आपको आपका पास होगा मिनिमम रिसोर्सेस ही, लेकिन आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो जिसका पास ये कैपेसिटी होगा मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेगा, वही क्लियर करेगा यूपीएससी एग्जाम। हम तो यही समझे हैं 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो यूपीएससी चाहता है जो मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले। तो यूपीएससी को भी पता है कि इसके पास लिमिटेड ही नॉलेज है, लेकिन वो इस लिमिटेड नॉलेज को कैसे वो पुट करता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसका एग्जाम है ये नॉलेज का एग्जाम नहीं है। बार बार बोला जाता है क्यों, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है किस लिए बोला जाता है ये नॉलेज का एग्जाम नहीं है। इसलिए कि आपको लिमिटेड नॉलेज ही होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम एज 21 है, और 21 क्यों है हम बता दिए आपको। तो और मैक्सिमम एज तब क्या है, तो ये देख लीजिए। ये हम इस पीपीटी को अपलोड भी कर देंगे आज कल को, जैसे अपलोड कर दिया था ये आपका टेलीग्राम सॉरी आपका व्हाट्सअप चैनल व्हाट्सअप में। तो इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप अगर जनरल तो आपका 6 अटेम्प्ट मिलेगा, 32 मैक्सिमम एज है देने का। ठीक है, तो अब ओबीसी है तो 35, ऐसे ऐसे होता है। तो मेनली हम लोग जनरल बा ओबीसी होते हैं, तो एसटी एससी प्लीज देख लीजिएगा, आप लोग का ज्यादा अटेम्प्ट होता है। तो ये यूपीएससी का क्राइटेरिया है। ओके, तो मैक्सिमम एज 32 तक होता है, और आपका 6 अटेम्प्ट मिलेगा। 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम होता है, और नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और जो निकालने वाला होता है तो वो 2-3 अटेम्प्ट में ही पहला अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं, तो वही वो नहीं है। तो आपका उतना डरने का चीज नहीं है। ये सिर्फ हम क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए हम ये स्लाइड डाले हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। पीएचडी नहीं चाहिए इस पे। लोग समझते हैं जब पहले मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, फिर करेंगे यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी तो यूपीएससी है भाई। तो लेकिन ऐसा बात नहीं है। यूपीएससी डाला है जो ये हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी मतलब नहीं है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कीजिए, आर्ट्स से कीजिए, कॉमर्स से कीजिए, कुछ भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। तो फिर लोग समझ लेते हैं जो नहीं ये तो आपका बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, ये तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन होने से ही हो जाता है। तो हम लोग का एक मिथ है जो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग का जो हम कल को जो बोल रहे थे, जो आप लोग का वाई अगर क्लियर है, तो आप ग्रेजुएशन का बाद ही इसका लिए ऑप्ट कर सकते हैं यूपीएससी का लिए। लेकिन प्रोवाइडेड लेकिन वही प्रोवाइडेड जो आपका वाई क्लियर है। लेकिन अगर हुआ क्लियर नहीं है ना, आप भटक जाएंगे, आप पछताना पड़ेगा फिर बाद में जाके जे ग्रेजुएशन का बाद। क्योंकि ग्रेजुएशन का बाद होता है ना लाइन, जो आप गलत लाइन चूज कर ली तो गलत हो जाएगा आपका साथ, और बहुत क्रूशियल टाइम होता है ये। अगर आपका हुआ क्लियर है जो हमको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, हमको यूपीएससी ही क्लियर करना है, तो आ जाइए ग्रेजुएशन का बाद। मास्टर्स का वो नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मास्टर्स तो मिलेगा ही आपको, जब आप लवासाना में जाएंगे तो आपको मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वो भी जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ओके, तो आपका मास्टर्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका हुआ क्लियर होना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं फट से बात सुन के आगे जो फिर बोले 2 साल बाद हमसे मिले कभी, तो बोले आप तो बोले थे जाने के लिए, अभी तो हमारा लाइफ बर्बाद हो गया है, ऐसा मत बोलिएगा। हाँ, आपका वाई अगर क्लियर है तो आप आ जाइए ग्रेजुएशन का बाद। ठीक है, हम आगे हैं तो हमारा वाई क्लियर है बिकॉज ओके। तो हम मास्टर्स नहीं किए हैं, तो सारे लोग बहुत बोला रहा हमको मास्टर्स करने का। अभी तारियांग सर सुन रहे हैं, तारियांग सर से बहुत बहस हुआ हमारा, जो आप मास्टर्स कर लीजिए पहले, फिर बाद में जाके करिएगा आपका यूपीएससी। लेकिन हम बहुत बहस किए सर से, प्रिंसिपल सर से, जो नहीं हमको तो यूपीएससी करना है। तो मेरा वाई क्लियर है एक्चुअली, तो हमको गिल्टी भी फील नहीं होगा अगर हम नहीं कर पाए। तो कर तो लेंगे, वही तो समय बताएगा। तो लेकिन वाई क्लियर है तो आपका ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के बाद आ जाए, ये क्योंकि जितना जल्दी क्लियर करेंगे उतना ज्यादा आपको सर्विस में टाइम मिलेगा ना, और उतना ज्यादा आप जो करना चाहते हैं, जो आपका हवाई जो है वो उसको सर्व कर पाएंगे। हमारा हवाई दूसरा है, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्विस में जाए। तो इसलिए हम ग्रेजुएशन का बाद मास्टर्स नहीं किए और डायरेक्टली आई एम शिफ्टेड टू दैट यूपीएससी लाइन। ओके, तो फिर क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, यूपीएससी तो सिर्फ यूपीएससी तो आईएएस बनाता है, यूपीएससी तो आईपीएस बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल अभी अभी 2021 का नोटिफिकेशन में 18 सर्विसेज है। क्या क्या सर्विसेज है ये देखिए, आपका स्क्रीन पे है कितना सर्विसेज है। हम लोग सिर्फ ऊपर वाला 3-4 को सर्विसेज को देखते हैं, कल को भी बोल रहा था हम, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस को देखते हैं। बाकी इतना सारा सर्विसेज है, 18 सर्विसेज है टोटल। तो ये सब भी सर्विसेज होता है, तो ऐसे पता रखना चाहिए। लेकिन हम लोग सबको पता है कि हम लोग को आईएएस आईपीएस और आईएफएस से बनना है, ज्यादा से ज्यादा आईआरएस बनना है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ओके, वो सब भी चाहिए, क्योंकि वो सब का कारण भी है, पता है जे हम लोग को जो नीचे वाला सर्विस है, जो ऐसा नहीं है जो उसमें कुछ आप देश को सर्व नहीं कर पाएंगे, व दूसरा उसमें उस सर्विस में कमी है, कुछ कमी नहीं है। उस सर्विस का यही लिमिटेशन है जो वो पब्लिक का साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। तो और हम लोग ऐसा ही समझते हैं जो पब्लिक का साथ जो इंटरेक्शन करता है वही देश को चला रहा है। ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत काम होता है। जो ये नीचे में सर्विस सब है, जैसे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये तो रेलवे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कैसे, रेलवे तो इंडिया का लाइफ लाइन है ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा है ना, तो सब सर्विसेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, कोई भी सर्विस किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो अपना अपना इंपॉर्टेंस है। सिविल जैसे कि आईपीएस का जैसे इंपॉर्टेंस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा ऐसा है, तो सब सर्विस देखिए आप, ग्रुप है, सब सर्विस का पार्ट्स, लेकिन हम लोग का पार्ट्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन सब सर्विस का ग्रुप ए सर्विस है। और आपका कोई लास्ट का 2-3 ग्रुप भी है आपको, लेकिन कोई भी आपको, सब अपना अपना सर्विस में अपना अपना योगदान देते हैं आपका देश चलाने में। ओके, तो सब सर्विस का इंपॉर्टेंस है। और आप लोग ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ओनली बनाता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस व इंडियन फॉरेन सर्विस बनाता है, ऐसा नहीं है। बहुत 18 सर्विसेज है, देख लीजिए आप कितना सर्विस है। और अभी तो पढ़ने का समय नहीं होगा, लेकिन बाद में पढ़ लीजिएगा एक बार क्या क्या सर्विस होता है, क्योंकि आपको बाद में जाके अलॉटमेंट मिलेगा तो तब दिक्कत हो सकता है। अच्छा, ये सर्विस इंडियन पोस्टल सर्विस भी होता है, हमको भी पता नहीं था ऐसा। ठीक है, तो और एक लड़का और लड़की एक लिखा था जो इंडियन आपका आईएएस ऑफिसर बनना है, आई और एस ऑफिसर बनना है, मेरा जैसे ही लिखा रहा। तो देख लीजिए, आईएएस नहीं होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, आईएएस होता है, आईएएस। ओके, तो जो भी जिसको पता नहीं है वो देख लीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है। फिर ये देखिए आपका, ये 2021 का आपका 2021 का नोटिफिकेशन फरवरी में आया था। तो 2021 का ये ब्रेकअप है सर्विसेज का। ये तो 2021 में आपका आईएएस में आपका देखिए, एसटी का लिए 27 सीट्स है, 27 सीट्स है, और एसटी के लिए 13 सीट्स है, ओबीसी के लिए 49 सीट्स है। ठीक है, तो टोटल 180 सीट्स है। तो ये सर्विस को, और टोटल कितना सीट का लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम होगा 2021 का, 712 सीट के लिए। और ये 22 जो सीट है वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए है। ऐसे हम बता रहे हैं जो कैसा होता है यूपीएससी, इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये देख लीजिएगा आराम से आप, हम पीडीएफ सॉरी आपका पीपीटी अपलोड कर देंगे। ओके, तो ये बेसिक चीज हुआ। क्या क्या समझे हम लोग, एज क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और सर्विसेज क्या क्या है। ठीक है, क्लियर। ओके, आप लोग बोलता रहिएगा, कुछ नहीं तो हमको लगता है ये नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ऐसा। ठीक है, आप लोग कुछ चैट में बोलता रहेगा। ओके 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 बोलता रहेगा, चैट में बोलिएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, नहीं तो हमको पता रहेगा कि चलो ठीक है, समझ रहा है। पर तो पैटर्न ऑफ, अभी अभी मेन चीज पे आ जाते हैं, जे हम लोग का पैटर्न क्या है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। और आपका दिमाग में अभी 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 इसी वक्त निकाल दीजिए जे क्या कुछ अगर दिमाग में है यूपीएससी का सिविल सर्विस के ऊपर, निकाल दीजिए। तो अभी जो बोलने वाले हैं उसको समझिए और फिर जाके कंपेयर कीजिए, ये सर गलत बोला या सही बोला। ठीक है, निकाल दीजिए। अभी जो बोलने वाले हैं उसको कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। पैटर्न क्या होता है यूपीएससी एग्जाम, कैसा होता है यूपीएससी एग्जाम। देखिए, यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव सब समझ रहे हैं ना, मल्टीपल चॉइस।
तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको एक में टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स एग्जाम होता है, वो जो रिटेन होता है उसका बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आप लोग। तो अच्छा से सुनिए, ये 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। हम इतना जोर देके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा एस्पिरेंट ऐसा है यहाँ पे, पार्टिसिपेंट ऐसा है जो इसमें पता नहीं है। तो हम जिस चीज को पता है तो ठीक है, हम एकदम बिगिनर के लिए बोल रहे हैं। ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, मेंस एग्जामिनेशन रिटेन में होता है, और पर्सनैलिटी टेस्ट तो आपको पता है जिसको इंटरव्यू भी बोला जाता है, जो कि आपको यूपीएससी का मेंबर का सामने बैठ के दिल्ली में जाके देना पड़ेगा। 3 स्टेज में होता है, ओके। तो हम लोग ब्रेकअप देखेंगे अभी, प्रीलिम्स कैसा होता है, मेंस कैसा होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट कैसा होता है। इतना तक किसी को डाउट है तो पूछिए हमको, पानी पी लेते हैं। फिर आपका पास 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड्स। किसी को डाउट नहीं है? गुड, गुड, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या बोले? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। हम क्या बोले, 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हम प्रीलिम्स बोल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, मेंस और इंटरव्यू। तो हम अभी पर्टिकुलरली इस स्टेज का बारे में बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज का बारे में बोल रहे हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो, उसका 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं जीएस पेपर 2, सॉरी, जीएस पेपर 2। तो दो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दो पेपर में बटा हुआ है, और हम क्या बोले थे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो जीएस जो पेपर 1 है उसका जो सिलेबस है उसका काल को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन आपको आज पैटर्न समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आज आप लोग पैटर्न समझ जाइए सिर्फ एग्जाम का। तो इतना स्लोली जाने का कारण यही है जो यहाँ पे बिगिनर्स भी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आदमी सब है। तो हम सिर्फ बिगिनर्स के लिए बोल रहे हैं। तो हम जानते हैं लास्ट बेंच को अगर बोला जाएगा तो फर्स्ट बेंच से ही समझ जाएंगे। हम तो लास्ट बेंचर था इसलिए, तो हम लास्ट बेंचर को समझा रहे हैं। तो वो लोग लास्ट बेंचर नहीं है लेकिन, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 टाइप से होता है, 2 पेपर से होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। और जीएस पेपर 1 में आपका ये सब रहता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या अभी ये सब जो सब्जेक्ट बोल रहे हैं कल को हम दिखाने भी वाले हैं आपको सिलेबस, ठीक है। तो ऐसे सुन लीजिए इसे। तो इसमें जनरल स्टडीज का जितना भी चीज होता है सब कुछ होता है यहाँ पे, जनरल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों होता है यहाँ पे। और जीएस पेपर 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग समझ रहे हैं ना, क्वालिफाइंग ये होता है जो इसमें 80 क्वेश्चंस रहता है और 200 मार्क का रहता है। और जीएस पेपर 1 में भी आपका 100 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स का रहता है। तो दोनों 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। तो मैंने प्रीलिम्स 400 मार्क्स में होता है, नीचे लिखा हुआ है देख लीजिए अच्छा से। जे 400 मार्क्स का होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर होता है, जिस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन रहता है और जिसमें जनरल स्टडीज का चीज सब रहता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब, ठीक है। और ये इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। और जीएस पेपर 2 का बारे में बोल रहे हैं, जिसको सीसेट पेपर भी बोला जाता है। तो उसमें 80 क्वेश्चन रहता है 200 मार्क्स के लिए। और उसमें वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग समझ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ पास करना है, आपको पास करना है। और इसमें क्या क्या होता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब होता है। और इसमें सिर्फ पास करना है, आपको 33% लाना है, जो कि अगर 200 का 33% होगा आपका 67 मार्क्स। सिर्फ 200 में 67 मार्क्स लाना है और इसमें पास कर लेना है। और इसमें जो अगर 200 में, जीएस पेपर 2 का बारे में बोल रहे हैं, जीएस पेपर 2 में अगर 200 में 200 भी लाए आपका कोई मतलब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम वो नहीं है, कुछ आपको मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको 67 लाना है। लेकिन आप इसमें फेल कर गए, अगर जीएस पेपर 2 में अगर फेल कर गए तो आपका पेपर 1 ही चेक नहीं होगा। और पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है, पेपर 1 मेरिट बेसिस पे होता है, इससे मेरिट डिसाइड होता है। और पेपर 1 में आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होगा आप मेंस में बैठ पाएंगे। ओके, ओके। तो
हम क्या बोल रहे हैं, जो जीएस पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें सिर्फ 33% लाना है। अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा भी नंबर लाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा, फेंक दिया जाएगा आपका पेपर 1, चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला पेपर 2 चेक होता है, उसमें आपको देखते हैं कि आप पेपर 2 क्लियर कर पाएंगे, पाए हैं नहीं, और फिर पेपर 1 चेक होता है, और उससे पेपर 1 से मेरिट डिसाइड होता है, जिससे डिसाइड होता है कि आपको मेंस देने के लिए दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। कोई डाउट है प्लीज पूछिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी है, और स्लाइड को रिवाइज कीजिएगा। ओके, और एक बार ठीक है, बोलिए ना, और एक बार बोलिए ना, थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूज हो गया। ओके कोई बात नहीं, हम फिर से बोल दे रहे हैं जी। जस्ट कि हम लोग का यहाँ पे एक बड़ा एक अभी जस्ट सडनली अर्थक्वेक हुआ है, तो अच्छा, थोड़ा सा इसमें हो आप गया कहाँ था। पे रहते हैं? मैं आपका सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, असम से हूँ। अच्छा मेरा नाम है अच्छा, वहाँ शुभांकर। पे आर्ट कोई बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा फिर यही हाँ है। सर, हम लोग का एक हैबिट से अभी मतलब हो गया है, मतलब कि रोज हो गया यार तो। चलो ओके थैंक ओके, हम फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट वाले। आपका नाम क्या है? यू। शुभंकर दे। शुभंकर। ओके, तो हम बोल रहे हैं जो तीन स्टेजेस में ये सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है। हम प्रिलिमिनरी स्टेज का बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज में 2 पेपर होता है, पेपर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को सीसेट पेपर भी बोला जाता है। सीसेट जो पेपर होता है जीएस पेपर 2, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। माने क्वालिफाइंग इन नेचर मीन्स आपका जो पेपर है वो उसमें सिर्फ 33% लाना है। ठीक है, आपका 33% लाने से आपका एक पेपर क्लियर हो जाता है, और अगर 33% नहीं ला पाए तो आप एलिमिनेट हो गए एग्जाम से पूरा। ठीक है, और जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें जनरल स्टडीज का चीज सब रहता है, क्या क्या रहता है हम लोग डिटेल में कल को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप ये जान के रखिए उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक जो भी बहुत कुछ होता है, और उसमें 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स के लिए, और इससे मेरिट डिसाइड होता है आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे कि नहीं, उसका इवेल्यूशन होता है इससे, जीएस पेपर 1 से। लेकिन पेपर 1 तभी चेक किया जाएगा जब आप जीएस पेपर 2 को क्लियर करेंगे 33% ले आकर। ओके शुभंकर, समझ गए आप? थैंक यू। ओके, अभी देखिए फिर से फोकस, प्लीज प्लीज फोकस रहिएगा। तो हम अभी क्या दिखाए थे हम, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का बारे में बात की है जिसमें 2 पेपर होता है। तो हम अभी नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। आप सोच लीजिए हम प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जीएस पेपर 2 में हम 33% लाए हैं, और हम इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं जो जीएस पेपर 1 में हमको मेंस में बैठने का मौका मिला है। ठीक है, और अभी मेंस में करना क्या होगा, मेंस में पेपर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी स्टेज 2 में है। ठीक है, अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम होगा प्लीज 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 पूछेगा। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अभी एग्जाम के बारे में जानने का तभी ना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। तो हम लोग मेंस का बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो स्टेज 2 है। तो मेंस में देखिए आप आपका स्क्रीन में कुछ चार्ट दिखाई दे रहा है। तो देखिए टोटल 9 पेपर होता है, 9 पेपर टोटल 9 पेपर होता है। और जो फर्स्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, टोटल हम बोल रहे हैं 9 पेपर होते हैं। ठीक है, जो टोटल 9 पेपर है उसका जो पहला 2 पेपर है जो का येलो हाईलाइटेड है, येलो से हाईलाइटेड है, पेपर ए और पेपर बी, वो जीएस पेपर 2 कहाँ पे जीएस पेपर 2 था, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 2 का जैसा क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें सिर्फ पास करना पड़ेगा आपको, पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये 300 मार्क्स एकदम इजी, क्लास 10 लेवल का इंग्लिश रहता है, क्लास 10 लेवल का आपका जो भी इंडियन लैंग्वेज होगा, जिसका एमआईएल होगा असमीज लेंगे, जिसका बंगाली होगा बंगाली लेंगे, हिंदी होगा हिंदी लेंगे। 22 शेड्यूल जितना भी लैंग्वेज है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में उतना लैंग्वेजेस है, आप किसी भी लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं, लेकिन उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो रीजन क्या है,
जे आपको अगर बेसिक चीज ही नहीं आता, बेसिक लैंग्वेज का चीज ही नहीं आता, तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे? बेसिक, हम नहीं बोल रहे हैं शशि शशि थरूर बनना है और लिटरेचर का कुछ बहुत बड़ा आदमी बोल रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज आता है। आप पेपर, हम आज दिखाएंगे जो पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो बेसिक चीज होगा उसमें क्लियर करना है उसको। वो अगर ये दो येलो हाईलाइटेड पोर्शन को, दो पेपर को क्लियर अगर नहीं कर पाए, तो आप जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लीजिए पेपर नेक्स्ट आपका 3 से लेकर 9 तक, कोई मतलब नहीं, उसका पेपर को फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर ए और पेपर बी को क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसमें बेसिक चीज होता है। और मेनली एस्पिरेंट सब क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इसको, ये क्या 10 लेवल का चीज है तो कर ही लेंगे। बहुत सारा लोग पेपर बाकी सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एमआईएल में फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है ना एमआईएल पढ़ते हुए। तो इंजीनियर सब जितना होता है, तो क्लास 10 में आपका पढ़े होंगे हिंदी और असमीज, तो वो लोग को लिए दिक्कत हो जाता है, जो क्लास 10 का चीज क्लियर करना दिक्कत हो जाता है। क्लास 10 लेवल का ही होता है, लेकिन आपको पेपर ए और पेपर बी में भी इंपॉर्टेंस देना है। ओके, तो आप लोग पेपर ए और पेपर बी के बारे में बोले, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर नेक्स्ट मेन पेपर सब जो मेन है, जिसका वजह से आप लोग को रैंक मिलने वाला है, जिसका वजह से आप लोग आईएएस बनने वाले हैं, आईपीएस बनने वाले हैं, जितना 18 सर्विसेज दिखाए हैं वो सब बनने वाले हैं। तो इससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा 3 से लेके 9 तक जितना भी पेपर है वो मेंस का अंदर गिरता है। मेंस का अंदर गिरता है मीन्स हम वो उससे मेरिट डिसाइड होता है आपका। और आप इन मत समझिएगा जो प्रीलिम्स जो क्लियर किए हैं उसका मार्क्स भी इंक्लूड होगा इसमें, जो 200 मार्क है उसका मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, उसका मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। मेन सिर्फ एलिमिनेशन प्रोसेस है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी सब देना चाहते हैं, लेकिन सबको तो आईएएस नहीं बना जा सकता ना, सबको तो सिविल सर्विसेज का इतना बड़ा पोस्ट सब नहीं दिया सकता है ग्रुप ए। तो इस प्रीलिम्स इसलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि लोगों को एलिमिनेट कर दे, इससे जो इनएलिजिबल है उसको हटा दे इससे। तो प्रीलिम्स का मार्क्स जितना भी मिले उससे कोई मतलब नहीं है आपसे। यहाँ पे 3 से लेकर 9 तक जो भी आपको मिलेगा और इंटरव्यू में जो भी आपको मार्क्स मिलेगा उसको टोटल करके आपका मेरिट डिसाइड होगा। देखिए आप इस चार्ट में, ये चार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इससे आपको सब समझ में आएगा। अब एक एक डिटेल्स, एक एक चीज का डिटेल्स देखिए आप कितना, जो पेपर ए और पेपर बी है वो 300 मार्क्स का है, और बाकी सब 250 250 250 मार्क्स का है, जो कि जिससे मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, जिससे मेरिट डिसाइड होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो पेपर 1 बोलते हैं ऐसे को, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर ऐसे 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 पेपर है ये सब। और हम लोग ऐसे इस पेपर को नहीं देखा जाता। हम लोग जब भी यूपीएससी का एक्सपीरियंस का बात सुनेंगे, जो टीचर है मेंटर है उसका बात सुनेंगे, वो लोग बोलेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 में ऐसा हो गया, जीएस पेपर 2 ऐसा आ गया, जीएस पेपर 4 हमको नहीं आता है, ऐसा टाइप का बात सुनेंगे। तो ये मेनली ये आपका जो नेम ऑफ द पेपर है ना उसको बोला जाता है। तो जीएस पेपर 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कल को, सिलेबस विथ सिलेबस। ठीक है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए जे ऐसा टाइप का टोटल 9 पेपर होता है। 9 पेपर से जो 2 पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और बाकी सब से आपका मेरिट डिसाइड होगा। सब पेपर में 3 घंटा का टाइम ड्यूरेशन है, और जो 3 से लेकर 9 तक का पेपर है 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इससे मेरिट डिसाइड होगा आपका। समझ रहे हैं आप लोग? और उसमें क्या क्या होता है, ऐसे होता है, जीएस पेपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 होता है, जिसका बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, कैसे ऑप्शनल को चूज किया जाए। ओके, आप लोग समझ रहे हैं? जो अगर किसी को इस चीज से डाउट है तो आप लोग प्लीज बोलिए, हमको पता है आप लोग को डाउट है, बोलिए। हेलो सर। बोलिए, नाम बताइए पहले। सर मैं অনিল মাটিমাৰে কৈছো। কোৱা, কি ক'লা তুমি? বুজি নাপালো মই। सर মোৰ মাতটো শুনি পাইছে? শুনি পাইছো, নামটো শুনি নাই। सर मैं অনিল মাটিমাৰে কৈছো ফ্ৰম ডিগবক। ओके ओके, सो सर ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট সাৰ্ভিসৰ কাৰণে ইউপিএসসি প্ৰিলিমছলৈকে তালৈকে একে সিলেবাস থাকে, বাট তাৰ মেইনছৰ সিলেবাসটো চেঞ্জ হৈছে নেকি বাৰু? হয়, যেটো ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট সাৰ্ভিস থাকে
ये तो सबका लिए है। ये सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपका अरिंदम ने। जे इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है, तो उसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का साथ एक ही साथ होता है। ठीक है, जो आपको सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर होगा, सेम टू सेम पेपर जो एस्पिरेंट आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका लिए अपियर होगा, सेम टू सेम पेपर होगा। सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेम टू सेम पेपर होगा। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फिर मेंस डिफरेंट हो जाएगा, और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा ज्यादा होता है सिविल सर्विसेज से। ठीक है अरिंदम, और बाकी फिर मेंस डिफरेंस हो जाता है। मेंस में दूसरा हम जो अभी दिखा रहे हैं आपका स्क्रीन में जो दिख रहा है वो सिविल सर्विसेज का पैटर्न है मेंस का। आपका जो फॉरेस्ट सर्विस का पैटर्न होगा वो आपको देखना पड़ेगा। हमको फॉरेस्ट सर्विस के बारे में एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हम नहीं बोल पाएंगे फॉरेस्ट सर्विस का क्या चीज है, लेकिन हम ये बोल पाएंगे जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम सेम टू सेम होता है विथ सेम सिलेबस एंड सेम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मेंस का बारे में आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा व किसी एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा। और वन सेकंड, एक चीज हम कल को भी बोलेंगे, सोच रहे थे कि आपको किसी भी चीज को पूछना होगा तो एक्सपर्ट से बात कीजिए। हम सिर्फ सिविल सर्विसेज का ऊपर 2 साल पढ़े हैं, जितना भी पता है सिविल सर्विस के ऊपर पता है। ठीक है, तो जी जैसे कि एक लड़की कल को पूछ रहा था जे सर कैसे आप प्रोफेसर कैसे बने, तो आप जो एक्सपर्ट होगा ना, सबको बोल रहे हैं उस लड़की को पर्टिकुलरली नहीं, सबको बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड पे उसको जाके पूछिए तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको हम तो बोल दे रहे हैं जे हम ऑनेस्टली जे हमको नहीं पता है बोल के, लेकिन लोग नहीं बोलेगा ऐसा जे हमको नहीं पता है, कुछ भी बोल देगा वो लोग। तो आप डिस्ट्रैक्ट, आप उसका बात सुन के आप ऐसा करने लगेंगे, क्योंकि आप बोले सोचेंगे जो यार बड़ा आदमी बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग मैंने खुद को दिखाने का चक्कर में आपका कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपको किसी भी चीज का लिए किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक्सपर्ट के साथ बात करिए। एक्सपर्ट समझ रहे हैं, हम कोर्ट में बोल रहे हैं एक्सपर्ट। तो अरिंदम, आप समझ रहे हैं जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है और क्वेश्चन पेपर होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ सेम होता है, लेकिन मेंस डिफरेंट होता है। मेंस के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, Okay, just I want to add Yes, here, Arindam. See that for the Indian Forest Service, you will have to only the science graduate can appear in this exam. Only the science graduate, not the arts or the commerce graduate, can appear in the Indian Forest Service. So the subject that you are going to choose will be only on the science basis. A person from engineering science, a person from agricultural science, a person from the biological science, or from physics department, or from chemistry department, or from mathematics, anybody from BSc can appear in the Indian Forest Service examinations. So this is an information. yes, sir. Thank you, sir. thank you for the information, sir. So please ask any question from other participants. प्लीज डोंट हेजिटेट। हम कल को बोले जे आपको कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का बारे में मत सोचिए और हमसे पूछिए, हम लोग फ्रेंड है। इफ आई फेल इन वन ऑफ द पेपर, क्या बोले, एक मिनट, if I fail in one of the paper, will I able to reach the interview? No. Abhishek Malla, no, you can't actually appear in interview, because if you fail in one paper, then you will be disqualified from the exam. Okay, एंड सिर्फ पास भी नहीं करना, आपको मेरिट, ये कंपटीशन है ना, तो आपको दूसरा से ज्यादा नंबर लाना है। तो आपको अगर किसी एक पेपर में आप फेल हो गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ओके अभिषेक, और कुछ किसी को पूछना है? नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़े क्या? क्या हम नहीं समझ रहे हैं। So my name is Biraj. ओके, So actually, I'm at the initial stage of the preparation. So हाँ I want to know that for every subject, the exam is conducted in different days, right? राइट, So Right. so we must qualify in every exam, and we must be able to be in the top list.
go for Yeah. the interview. Yeah, right. You are right. Top list doesn't mean that you have to score 90% in every paper. You don't have to. Actually, what happened in civil services? In civil services, actually, the topper of the examination, his percentage is almost 55, 56%. Okay, his percentage is 55, 56. So you don't have to score 90% like university exams, but you should have your score should be better than others. Okay, otherwise you will disqualify. And they actually don't give that much of you. If I will discuss about the question pattern and everything, then you will have the better clarity. Okay. Thank you, sir. Okay. Are you Then going to answer the chat questions, or you will answer it later on? I will answer later on because chat questions are I have to read actually. That's why. Yeah. Then I am going forward. Okay. Then I am telling you that in the mains examination there are 9 papers, and every paper you have to qualify, and first 2 papers are in qualifying nature, and from 3 to 9 you have to score best in this paper, because in the according to this paper your merit will be decided. Okay, then if you get very good marks in this paper, then you are going to give the interview in front of the prestigious UPSC panel, and in UPSC interview there is a mark of 275 marks. They will give you marks of 275. Within 275 they will give you that next mark. ठीक है, तो आपको 275 भी मार्क्स ही है। मैंने हम अगर इसको बोले ये मेंस पेपर का ही पार्ट है, आपका जो इंटरव्यू होता है ना मेंस का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें आप ये समझ लीजिए ये 10 नंबर पेपर है, 10 नंबर पेपर है जो इंटरव्यू है, लेकिन उसमें लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ जाके बात करना पड़ता है अच्छा से। उसमें 275 मार्क्स रहता है, और इंटरव्यू पैनल आपको 275 से आपको जितना देना है देगा। ठीक है, तो और टोटल करके ये सब का आपका 3 से लेके 9 तक इसका टोटल होगा, और इसका टोटल होके आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा, और जब इंटरव्यू भी हो जाएगा आपका इंटरव्यू मार्क्स भी जोड़ा जाएगा 3 से लेके 9 तक का बीच में, और आपका मेरिट निकालेगा बाद में। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना होता है, मतलब देख रहे हैं एकदम लास्ट में 2025 मार्क का एग्जाम होता है यूपीएससी मेंस। ठीक है, 2025 मार्क का इंटरव्यू आपका टोटल होता है मार्क्स यूपीएससी का, और उसमें से अगर पार्टिकुलरली मेंस का बारे में बताया जाए तो 1750 750 मार्क्स का होता है। आप लोग को सब कुछ दिखाई दे रहा है जो चार्ट है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, और हम इसको पीडीएफ अपलोड करने वाले हैं। ये सेशन खत्म होने के बाद आप लोग फिर से देख लीजिएगा, और डाउट होगा तो हमको पूछ सकते हैं, आपको हम आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये फिर से कंक्लूड भी कर दे रहे हैं। जो प्रीलिम्स होएगा वो 2 पेपर रहेगा, और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और एक जो पेपर में एक पेपर क्वालिफाइंग होगा जिसमें सीसेट मैथ्स ये सब होता है, और उसको क्वालिफाई करने से नेक्स्ट दे सकेंगे एग्जाम। ठीक है, फिर और नेक्स्ट पेपर क्लियर आपका चेक किया जाएगा। तो आप अगर पेपर 1 में गुड परफॉर्म किए तो आप मेंस में बैठने सकेंगे, और मेंस में 9 पेपर होता है इतना बार बार डिस्कस किए, और उसमें से 9 पेपर से 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, और 4 पेपर जीएस का होता है, 1 पेपर एसए का होता है, और 2 पेपर ऑप्शनल का होता है। ठीक है, और आप फिर 275 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और आप अगर तीनों स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म किए हैं तो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज का बारे में जो बात किए हैं वो होता कब है। देखिए, जनरली अभी तो कोरोना वायरस का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, अभी तो शेड्यूल बिगड़ गया है, पूरा देश का शेड्यूल बिगड़ गया है, तो यूपीएससी का भी शेड्यूल बिगड़ गया है। तो जनरली क्या होता है, नोटिफिकेशन जो एग्जाम का हर साल नोटिफिकेशन आपका फरवरी मार्च महीना में आ जाता है। इस बार भी फरवरी मार्च महीने में आ गया था, इस बार भी।
नोटिफिकेशन जो होता है, तो नोटिफिकेशन होता क्या है एक्चुअली? नोटिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो यूपीएससी अपना वेबसाइट पे अपलोड करता है। उसमें सर्विस कंडीशन, आपका सिलेबस, आपका सर हर चीज लिखा होता है। 160 पेज का डॉक्यूमेंट है इस बार। तो 160 पेज में एवरीथिंग लिखा होता है। उसमें ऑप्शनल का भी सिलेबस मिलेगा। हमको पूछता है कोई लोग जे भैया सिलेबस ही नहीं मिल रहा है, अरे भाई तो यूपीएससी का जो वेबसाइट है उसमें होता है। और हम आज आपका जो नोटिफिकेशन है इस बार का 2021 का जो नोटिफिकेशन है, हम आपको जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें हम देने वाले हैं। ओके, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तो पढ़ने का हम लोग का वो नहीं है, पेशेंस नहीं है। सिर्फ अपना जो ऑप्शनल होगा, हम अब अभी बोलेंगे ऑप्शनल के बारे में, क्या चूज करना है, क्या फैक्टर कंसीडर करना है, उसका सिलेबस पढ़िएगा। जीएस पेपर 1 2 3 4 का पेपर पढ़िएगा। ऐसे का क्या लिखा हुआ है, और प्रिंसिप आपका प्रीलिम्स में क्या है, सब कुछ लिखा होता है उसमें। सर्विस कंडीशन क्या है, आपको कब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कब क्या होगा, सब कुछ लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो वो जो उसको नोटिफिकेशन बोला जाता है एक्चुअली। तो नोटिफिकेशन आता है फरवरी मार्च महीना में हर साल का। फिर आपका प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है वो जून, अभी तो रिसेंटली मई में, लास्ट ईयर मई में किया हमने, आगे बढ़ा रहा है। तो कभी कभी ऐसे जून जुलाई अगस्त में हो जाता है जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक सप्ताह भी नहीं हुआ, 2021 का मेंस को पोस्टपोन करके अक्टूबर में लेके गया। पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हम जो जून में होने वाला था आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का, वो अक्टूबर में चला गया है। तो ये तो पेंडेमिक सिचुएशन है इसलिए हो रहा है। जनरली ये ट्रेंड रहता है जो आपका स्क्रीन पे है, जे आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जून महीना में होता है, आपका मेंस एग्जामिनेशन अराउंड नवंबर दिसंबर में होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू भी बोला जाता है वो फरवरी मार्च अप्रैल में होता है, आपका जून फाइनल रिजल्ट आ जाता है जून जुलाई में, और अगस्त सितंबर में आप लवासन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड होता है। आप देख रहे हैं कुछ एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो ये पूरा प्रोसेस ही एक साल का है। पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, आपका नोटिफिकेशन से लेके आपका फाइनल रिजल्ट आने तक पूरा एक साल हो जाता है, एक साल से ज्यादा हो जाता है बोलने से। तो क्या देख रहे हैं जे आपका, इससे वो लोग क्या चेक करता है, आपका पेशेंस चेक किया जाता है। बहुत कितना पेशेंस है आपका पास। तो अगर आपका पास पेशेंस नहीं होगा तो आप सर्विस में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना टफ कंडीशन होता है सर्विस का। आप लोग टिक ही नहीं पाएंगे। तो उसको ही लिया जाता है जिसका पास पेशेंस होगा। और इसका हम क्यों बोल रहे हैं जे पेशेंस चेक किया जाता है, क्योंकि देखिए कल लास्ट ईयर का अगर आप ट्रेंड देखें तो लास्ट ईयर क्या किया, अक्टूबर महीना में, लास्ट ईयर भी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम था, दो पेंडेमिक का प्रॉब्लम था, लास्ट ईयर भी अक्टूबर में चला गया था प्रीलिम्स का बारे में बात करें। और अभी तो आप लोग को पता है प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। तो प्रीलिम्स क्या हुआ रहा आपका, अक्टूबर महीना में चला गया रहा। और अक्टूबर महीना का आई थिंक 8 और 9 तारीख को हुआ रहा प्रीलिम्स, हमको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो प्रीलिम्स अक्टूबर महीना में हुआ रहा, और 19 दिन का बाद ही वो मेंस का लिए 19 दिन का बाद ही आपका रिजल्ट निकाल दिया। ऐसे देखिए आप प्रीलिम्स और मेंस के बारे में कितना ज्यादा गैप होता है। तो लेकिन वो लोग का, हाँ, इससे क्या समझ में आता है, यूपीएससी का पोटेंशियल होता है जे जल्दी एग्जाम को कंडक्ट करा के खत्म करने का। लेकिन वो लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आपका इस प्रोसेस से आपको निखारना चाहते हैं, वो लोग आपको ट्रेन करना चाहते हैं, इसलिए इतना ज्यादा टाइम दिया जाता है। एक साल का पूरा ड्यूरेशन दिया जाता है, आपको पेशेंस चेक किया जाता है। तो इससे घबराइए मत, इससे इसलिए इसलिए टफ भी होता है जो जिसका पास पेशेंस नहीं है। लेकिन जो सर्विस के लिए क्वालिफाइड होगा, देखिए एक बहुत मजेदार बात है जो अब तो ऑफिसर ना आप पहले से ही होते हैं, यूपीएससी सिर्फ थप्पा लगाता है। ये बात सुने होंगे आप लोग अगर यूट्यूब से यूट्यूब देखते हैं, तो यूपीएससी सिर्फ थप्पा लगाने का काम करता है। आप ऑफिसर पहले से ही होते हैं, आपका एटीट्यूड में दिखता है जो आप ऑफिसर है कि नहीं। आपको पता रहेगा जो हमको तो ऐसा ही करना है, हमको तो ऐसा ही करना है। तो आपका आपका जो तब कंफ्यूज नहीं होंगे जो आपको ना हिंदू पढ़ना है ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, कंफ्यूज एकदम नहीं होगा, क्योंकि आपका पास वो ऑफिसर वाला क्वालिटीज है। ठीक है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है ना, क्या है जिसको पता नहीं, आई एम सॉरी, हम कल को डिस्कस करने वाले स्पेक्ट्रम क्या होता है, बिपिन चंद्र क्या होता है, तो उसका बारे में कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका पास ऑलरेडी ऑफिसर वाला क्वालिटीज है। वो सिर्फ यूपीएससी थप्पा लगाता है जे ये चलो ऑफिसर बन गया, सर्टिफिकेट देता है जे ऑफिसर बनने का। तो आप ऑफिसर पहले से ही हैं। तो अगर आप ऑफिसर पहले से ही हैं तो आपको इस प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चल लो, कर देगा, ऐसा पेशेंस है, क्योंकि आप ऑफिसर वाला क्वालिटीज होना बहुत बड़ा बात होता है। आपके पास पेशेंस होना पड़ेगा, डेडिकेशन होना पड़ेगा, बहुत कुछ होना पड़ेगा जो, और आपका व्हाई क्लियर होना पड़ेगा, सबसे मेन बात। ठीक है,
इतना तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बहुत जल्दी, हम 30 सेकंड है आपका पास, क्योंकि ये लंबा होते जा रहा है। किसी को डाउट है पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन में किसी को डाउट है? You are not audible. You are not audible. Just can you write it in the chat box, because we are unable to hear it. It's better you write it down in the chat box. Then once your Ben is okay, then you can also directly talk. Any more students want to interact? Anyone? Turin Chetia is asking that sir, preliminary exam में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं? यस, हम बोलने भूल गए थे, सॉरी। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है, और हम ये भी बोलेंगे जी मेंस एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, ये पता नहीं होगा लोगों को। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.67 का नेगेटिव मार्किंग होता है 2 मार्क्स से। आपका जो आपका, एक मिनट, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 2 पेपर में बटा होता है, हम लोग डिस्कस किए। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, आपको अगर एक क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 में अगर एक क्वेश्चन आप गलत मार्क कर दिए तो आपका 0.67 मार्क काट दिया जाएगा पहले से। ओके, और अगर राइट टिक किए तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स होता है। और जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर जो सीसेट पेपर बोला जाता है, उसमें आपका होता है उसके थोड़ा ज्यादा होता है 2 से, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो उतना कंसर्न नहीं है जीएस पेपर 2, वो तो क्वालिफाई कर ही लेंगे आप लोग, हम तो ये पता है जीएस पेपर, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होता है। सर व्हाट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर 1? क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर ए और पेपर बी का क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 25%। आपको 300 मार्क्स का अगर 25% निकाले तो आपका आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, 25% होता है, बहुत कम होता है। आपका जो इंडियन लैंग्वेज होता है और इंग्लिश का। ओके, 25%। ओके, आपका जो जीएस पेपर 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो जीएस पेपर 1 है, मिनिमम कट ऑफ देखिए, आपका जो आपका कास्ट का ऊपर डिपेंड करेगा। एक्चुअली जो जनरल होता है, जनरल का मिनिमम कट ऑफ ऐसे आपका 200, आपका 200 से एग्जामिनेशन होता है। जीएस पेपर 1 का बात कर रहे हैं हम, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 200 मार्क्स से आपको 110, 112 ऐसा पाना पड़ेगा। और कभी कभी 120 भी चला जाता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का बहुत ज्यादा जाता है, 140 तक चला जाता है कट ऑफ। जीएस पेपर 1 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और ऐसे और ओबीसी का भी जितना उतना डिफरेंस नहीं होता है। आपको 100 का 100 क्रॉस करना पड़ेगा 200 मार्क्स में, पेपर 1 का बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इस सेशन का पार्ट 2 में आ जाते हैं। हम लोग का पास टाइम कम है, हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं, और अभी हम लोग इस सेशन का पार्ट 2 में है। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है जो हम लोग को जो आपका मेंस है, मेंस का जो 8 नंबर पेपर है और 9 नंबर पेपर है, जो कि ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 का बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शनल को क्या कैसे चूज करें, और ये मत समझिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ऑप्शनल 2 नहीं होता है, ऑप्शनल एक ही होता है। उसका एक ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। जैसे कि आपका ऑप्शनल है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का 2 पेपर होगा, ना कि आपका ऑप्शनल 2 चूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऑप्शनल आपका एग्रीकल्चर चूज किए तो एग्रीकल्चर का 2 पेपर होता है। ठीक है, क्या बोले, हम लास्ट में आपको आप लोग का सबका क्वेश्चन क्वेरी का आंसर देंगे। ठीक है, हम अभी ऑप्शनल का बारे में बात कर लेते हैं, पहले सब कुछ एक साथ बोलेंगे, एक आंसर देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो ऑप्शनल जो होता है 2 पेपर नहीं होता है, एक ही पेपर होता है, जिस
मैंने एक ही सब्जेक्ट होता है जिसका 2 पेपर होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है जिसका 2 पेपर होता है, आई रिपीट। तो ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्शनल देखिए, ऑप्शनल ही एक चीज है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ही एक चीज है जो आपका ऊपर छोड़ा गया है यूपीएससी का तरफ से, और कोई भी चीज आपका ऊपर छोड़ा नहीं गया है, सब वो लोग डिसाइड करता है। आप सबका लिए कॉमन होता है जी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर, बाकी 9 पेपर दिखाए गए हैं, जो उसका आपका बाकी सब पेपर आपका देना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपका। और यही ऑप्शनल पेपर है जिसको आपका ऊपर छोड़ा गया है, जो आप चूज कर लीजिए ऑप्शनल पेपर, ठीक है, यही आपका ओनली डिस्क्रिप्शन है आपका, आपके लिए। पर ये चीज आपको रैंक दिलाएगा, यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर आपको रैंक दिलाएगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीएस पेपर जो होता है ना, जो जीएस पेपर होता है, जो जीएस पेपर का लगभग हर एक एस्पिरेंट का, सीरियस एस्पिरेंट का बारे में बात कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट का हर एक एस्पिरेंट का लगभग एक ही टाइप का नॉलेज होता है। वो एक ही द हिंदू पढ़ता है, एक ही बुक पढ़ता है, सब कुछ एक ही करता है, एक ही टाइप का मेहनत करता है, तो सब कुछ एक ही करता है। तो आपका क्या होता है, और मार्क्स भी मेनली जो प्रोफेसर होता है एग्जाम यूपीएससी का आंसर शीट चेक करता है, वो बहुत बहुत क्या बोले हम, वो बहुत कंजूस होता है। तो वो सिर्फ बहुत चूजी होता है, मैंने एकदम बहुत कम मार्क्स देता है। तो आपको, आप जितना भी अच्छा लिख ले, आपको क्योंकि जनरलाइज पेपर है ना, तो आपको आर्ट्स का लोगों को पता होगा, जो जनरलाइज पेपर में आप जितना भी अच्छा लिख ले, तो आपको एक एवरेज मार्क्स ही मिलने वाला है। जितना भी अच्छा लिख ले, बुरा से बुरा, अच्छे से अच्छा, लेकिन बुरा लिखेंगे तो वो लोग गुस्सा हो जाएगा, फिर आपको निगेटिव मार्किंग कर देंगे। एक बार क्या हुआ ना, ऐसे ऐसे पेपर हुआ था, एकदम शॉर्ट स्टोरी है। एक लड़का था, बहुत सीरियस एस्पिरेंट था, तो वो क्या किया, ऐसे में थोड़ा जो ऐसे पेपर होता है, जो 3 नंबर का बात कर रहे हैं, जो ऐसे पेपर होता है उसमें 2 ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो 2 ऐसे लिखा जाना चाहिए, उसमें दो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको चूज करने के लिए 8 ऐसे दिया जाएगा। तो 8 ऐसे जब दिया जाएगा, तो वो क्या किया, नंबर गलत कर दिया। जे आपका जो, पकड़ लीजिए आपका ऊपर आया, ऐसा ऊपर आया, लिखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसा ऐसा इजी टॉपिक नहीं आता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आया, और दूसरा कुछ आया, पकड़ लीजिए आपका इंडियन कल्चर का ऊपर कुछ ऐसे का टॉपिक आया। तो इंडियन कल्चर का ऊपर जो नंबरिंग किया हुआ था 2 नंबर, तो 2 नंबर का जगह वो नंबरिंग गलत कर दिया, और उसका वजह से उसका पूरा नंबर कट लिया। जिस आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं और आप नंबर गलत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है सर का लिए। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था इसका वजह से, तो बहुत दंगा हो जाता है। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो ऐसा है मैंने, तो निगेटिव मार्किंग भी होता है, और आपका ज्यादा हम लोग का लिए इम्पोर्ट होता है तो बोल रहे हैं जो बाकी सब सब्जेक्ट में एक ही नंबर दिया जाएगा, एवरेज मार्क्स ही दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शनल आपका डिफर करेगा, क्योंकि ऑप्शनल में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ऐसा है, होता है। तो आपको अगर ऑप्शनल में कमांड होना पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शनल बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है ऑप्शनल चूज करना। अगर गलत ऑप्शनल चूज कर लिए तो आपको फिर पछताना पड़ेगा बाद में जाके। और जो आप लोग कोई कोई एक्सपीरियंट जो वेब सीरीज है वो देखे होंगे, तो ऑप्शनल का ऊपर एक वो लोग एपिसोड ही बना दिया है ये ऑप्शनल चूज करना कैसा है। तो और आज प्रवीण भी पूछ रहा था जो ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो हम अभी ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज 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 अच्छा से सुनिएगा, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका रैंक डिसाइड करने के लिए। और यही चीज है जो कि यूपीएससी आपका ऊपर छोड़ दिया है, और जो चीज आपका ऊपर छोड़ा है ऑब्वियसली उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। तो इस ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो कि हमको मैक्सिमम फायदा दे एग्जामिनेशन में, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट में तो एवरेज मार्क्स ही मिलने वाला है अगर हम सीरियस एस्पिरेंट है। अगर जैसे जैसे ये दे रहे तो ऑब्वियसली कम नंबर ही मिलेगा, सीरियस एस्पिरेंट को एवरेज मार्क्स ही मिलता है। तो देखिए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या लिस्ट क्या क्या होता है टोटल, देखिए ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये सब हम यूपीएससी का हम ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन से लिए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो एग्रीकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री, बोटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। हाँ, मोटा मोटी आपको सब्जेक्ट मिल ही जाएगा, आपका खुद का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग। आपका लिटरेचर सब्जेक्ट भी है, असमीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
एवरीथिंग है, मेडिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, सब। और आपका आप जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मिलेगा अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, प्रोवाइडेड। तो मेन बात है अभी क्या कैसे चूज करें ऑप्शनल। तो हम कैसे चूज करें वो बताने के पहले क्या 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 फैक्टर है उसका ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, और क्या क्या फैक्टर डिस्कस करने का पहले क्या फैक्टर कंसीडर नहीं करना है उसको, क्योंकि सब लोग हम बोल देंगे जी ये करो ये करो वो करो, लेकिन जो करना नहीं है वही कर देंगे। तो हम इसलिए पहले रखें जी क्या करना नहीं है, ठीक है। तो तब हम लोग को माइंड में क्लियरिटी होगा जी ये तो करना नहीं है। तो पहला बात जो फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, पहला बात ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जो स्कोरिंग होता है, पॉपुलर होता है, स्कोरिंग माने एकदम ट्रेंड होता है जो भीड़ लेता है, हम वो सब्जेक्ट लेंगे। अगर लोग करता है लेकिन ऐसा गलत चीज है, क्यों गलत चीज है बोल रहे हैं, पानी पीजिए। आप लोग पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। तो हम बोल रहे हैं जब हमारा करंट चला गया है तो हम हमारा बंद कर देते हैं हमारा। तो हम क्या बोल रहे हैं जी, आप वैसा सब्जेक्ट मत चूज कीजिए जो पॉपुलर होता है, ट्रेंडिंग होता है, स्कोरिंग होता है। ऐसा मेन एक नंबर बात, तो ऐसा कोई चीज कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जो ट्रेंडिंग होता है, पॉपुलर होता है। वो हम लोग का दिमाग का भ्रम है। जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंडिंग होता है, बहुत चलता है, जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा मार्क देता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को भीड़ देख के ले लेंगे, अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप क्या परफॉर्म करेंगे बोलिए। तो ऐसा बात होता है ना। तो पॉपुलर सब्जेक्ट, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है बोल के, स्कोरिंग है बोल के उस सब्जेक्ट को प्लीज 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 नहीं लीजिएगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट में अगर आपका कमांड ही नहीं है तो आप बुरा परफॉर्म करेंगे उसमें, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता। अगर ऐसा होता यूपीएससी खुद अपना नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करता है ये सब्जेक्ट लीजिए क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग प्रीफर करते हैं, ये सब्जेक्ट पॉपुलर है, इसमें ज्यादा मार्क्स देते हैं। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें जो पॉपुलर होता है, ट्रेंडिंग होता है, सब हम लोग का भ्रम होता है। जे हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम 2 साल इस फील्ड में देखे हैं, आदमी को गलती करते हुए देखे हैं। पॉपुलर सब्जेक्ट है इसलिए ले लिए है। हमारा खुद का भैया एक है, हम नहीं बोलेंगे नाम, लेकिन ऐसा है। बहुत बहुत गलत किए हैं जे सब्जेक्ट पहले, जे ऐसा लोग बोल दिए जे ये सब्जेक्ट ले लो अच्छा है, स्कोरिंग है, ज्यादा मार्क्स मिलता है, तो ये सब्जेक्ट ले लिए, फिर पछता रहे बाद में जाके। ये टाइम बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा आपका। प्लीज 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 ध्यान रखिए इसके बारे में, ठीक है। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, हम XYZ सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हमको इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस करना है। ये सब्जेक्ट इसलिए लेंगे हमको क्योंकि इंटरव्यू पैनल को मैंने इम्प्रेस करना है। ऐसा कोई चीज मत कीजिएगा, इंटरव्यू पैनल कोई भी बायस नहीं होता है कोई कोई भी सब्जेक्ट का ऊपर। वो लोग सबको एक ही नजर से देखते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जे आप इस सब्जेक्ट लिए तो आपको ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा इंटरव्यू में, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, बहुत बहुत ज्ञानी होता है वो लोग कभी भी बायस नहीं होते। जो आप पकड़ लीजिए, आप साइंस से है और आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिए जैसे कि लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट ले लिए, इसलिए इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस्ड हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आर्ट्स से है, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है, लेकिन आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लिए हैं तो इसका लिए आपको इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस्ड होने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम बोलते हुए सुने जो नहीं ये सब्जेक्ट लेंगे तो इंटरव्यू पैनल को खुश होगा क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है, तभी भी हम इस सब्जेक्ट को लेके क्लियर किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंटरव्यू पैनल कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है आप सब से। हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है, अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका बेसिस पे आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा जो हम ऐसा सब्जेक्ट ले लेंगे तो इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस होएगा। फिर कोई कोई ऐसा समझता है, अजीब अजीब आदमी होता है जे हम यही सब्जेक्ट लेंगे, XYZ सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि इससे हमको सर्विस में अच्छा, सर्विस में हमको वो मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, सर्विस में फायदा मिलेगा। ऐसा प्लीज 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 मत कीजिएगा, क्योंकि पहले आप सोचिए जी ये एग्जाम कैसे क्लियर करें, सर्विस के बारे में बात बाद में सोचिएगा। पहले सोचिए जी एग्जाम कैसे क्लियर करें, और एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारा कौन सा सब्जेक्ट सुइटेबल होगा, सर्विस का बारे में। और मेन बात क्या है ना, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं इसलिए क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो आप
सब्जेक्ट तो थियोरिटिकल होता है ना, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ऐसा मत समझिए जे हम ये सब्जेक्ट ले लेंगे तो हमको सर्विस करने में आसानी होगा, ऐसा कोई नहीं है। आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आपको ये एग्जाम क्लियर कराए, वही बात है। फिर बाद में देखा जाएगा, सर्विस में जाके आप अपना पसंद का सब्जेक्ट पढ़ता रहिएगा, लेकिन अभी ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो कि इस एग्जाम को क्लियर कराए। ओके, ऐसा सब्जेक्ट मत लीजिएगा जो सर्विस में हेल्प करेगा, बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, ऐसा मत समझ लीजिए वो करेगा। सिर्फ एग्जाम को फोकस करिए। तो नेक्स्ट, तो फिर और एक चीज होता है 4 नंबर बात, हम ये सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि इसका सिलेबस शॉर्ट है, इजी है, कवर है, इजी टू कवर है। ऐसा कोई किसी सब्जेक्ट का सिलेबस शॉर्ट नहीं होता भाई, इजी टू कवर नहीं होता, ये सब मन का भ्रम होता है। अपना सब्जेक्ट का अपना अपना टेक्निकलिटीज होता है, अपना अपना मेरिट्स होता है, अपना अपना डिमेरिट्स होता है। तो शॉर्ट है, इजी होगा कवर करने में, ऐसा सोच के कभी भी सब्जेक्ट नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो कमांड ही नहीं होगा, तो क्या क्या मैंने आपको वो शॉर्ट सिलेबस को भी लॉन्ग टाइम लग जाएगा कवर करने में। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा जो आपको इसका तो सिलेबस शॉर्ट है, ये ले लेते हैं, इसको कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा कवर करने में, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। ओके, तो ये सब चीज नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? 1 नंबर बात, पॉपुलर सब्जेक्ट बोल के नहीं लेना है, क्योंकि लोग बोलता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा बात चलता है जो ये पॉपुलर है, ये ले लीजिए आप, फिर बाद में जाके पछताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमको इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस करना है इसलिए लेना है ये सब्जेक्ट, गलत बात है, ऐसा मत कीजिएगा। इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस नहीं होता है कोई एक सब्जेक्ट से, बायस नहीं होता है कोई एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली। फिर हम सोचते हैं जो इसको सर्विस में हेल्प मिलेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगा। आप पहले सर्विस तो ले लीजिए यूपीएससी से, बाद में सर्विस के बारे में सोचिएगा। ओके, नेक्स्ट, आपका सिलेबस शॉर्ट है, आपका इजी टू कवर है, ये सब मत सोच कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या अभी हम कहना क्या चाहते हैं, जे आपको तब ये सब नहीं लेना है तो करना क्या है, क्या चीज, कौन सा फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमको सब्जेक्ट, जिससे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कौन सा फैक्टर ऐसा होगा? तो हम सिर्फ 2 फैक्टर के बारे में बोलेंगे, सिर्फ 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर अगर आप ध्यान में रखकर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए, कोई भी ऑप्शनल हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे जो आप ग्रेजुएशन का ही ऑप्शनल लीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। आपका ये 2 फैक्टर ध्यान में रखिए और फिर ऑप्शनल चूज करिए, गारंटी है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट गुड ही चूज करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, जो कि बहुत सीरियस एस्पिरेंट भी गलती करता है। ओके, क्या क्या 2 फैक्टर है आपका, क्या क्या 2 फैक्टर होगा हम बोल रहे हैं। 1 मिनट, करंट आ गया है तो हम वीडियो ऑन कर देते हैं। तो पहला बात क्या है? पहला बात, आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? वही सब्जेक्ट चूज कीजिए। यहाँ से ये जो हम सब्जेक्ट का लिस्ट दिखाए हैं, आपको वही सब्जेक्ट चूज करना है इस लिस्ट से जो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस सब्जेक्ट पे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत रिगरस होता है जर्नी, बहुत रिगरस होता है, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा। तो जब जीएस पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा ना, आपको ऐसा एक सब्जेक्ट होना पड़ेगा जिसको पढ़ के आपको मजा आए, मजा, मीन इट। क्योंकि इसमें ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिससे आप लगता है नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ने से हमको खुशी मिलता है, आपको खुशी। तब क्या होगा ना, जो आप जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब आपको वो होगा जो नहीं, चलो ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमको दिमाग ठीक होगा। तो इससे क्या होगा, 2 चीज होगा, एक तो आपका सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही करता है जो सीरियस एस्पिरेंट होता है। क्योंकि आपको दिमाग को उल्लू बनाना है, सिंपली बोले तो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है इसलिए। तो दिमाग तो पढ़ना नहीं चाहता है, दिमाग तो घूमना चाहता है ना। तो दिमाग को उल्लू ऐसे बनाएंगे जे आप ऑप्शनल से बना सकते हैं, क्योंकि 2 फायदा है इसमें, जे आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करेगा, और दूसरा चीज आपका सब्जेक्ट भी प्रिपेयर होगा, और चीज में कमांड भी रहेगा, और आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। 2 चीज होगा इससे। इसलिए हम बोल रहे हैं जो ऐसा सब्जेक्ट ही चूज कीजिए, कोई भी चूज कीजिए, आपका वो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन का हो, लेकिन वो सब्जेक्ट ही चूज कीजिए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो। नहीं तो आप लोग पछताने वाले हैं, क्योंकि वो ही सब्जेक्ट आपका ऊपर बर्डन लगेगा। ठीक है, तो पहला बात ये है कि आपका इंटरेस्ट होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में, समझ गए लोग? तो इंटरेस्ट का बिना कुछ नहीं होने वाला। तो क्योंकि जीएस पेपर सब तो कंपलसरी पेपर्स है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट हो इंटरेस्ट ना हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही,
क्योंकि आपको यूपीएससी क्लियर करना है। लेकिन जो कि ऑप्शनल आपका हाथ में है, तो आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए ना जो कि आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट हो। ऐसा ऐसा मत कीजिए ये पॉपुलर है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तभी पढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलर है, तो आप लोग पछताने वाले हैं। क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट लीजिए, अगर इनके भगवान ना करे जो आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, आपको उस सब्जेक्ट पढ़ने का एक वो हो, मैंने एक इंटरेस्ट हो जो, क्योंकि हम लोग नहीं जानते ना कितना अटेम्प्ट में हम लोग का क्लियर होने वाला है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत अनसर्टेन है। तो ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आप सालों साल पढ़ सके। ऐसे हम चाहते हैं कि आप लोग पहली अटेम्प्ट में ही निकाले, लेकिन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का हो जाता है, नहीं निकलता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, लक का भी एक छोटा सा फैक्टर होता है, जितना भी हार्ड वर्क कर ले वही मैंने तो एक फैक्टर होता है जो चलो मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। अगर इंडिया का पॉपुलेशन देख लीजिए, हर एक दूसरा लड़का को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सिविल सर्विस देना है, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपका स्ट्रेटेजी मैटर करता है जो आप कैसे कर रहे हैं। तो आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो इनकेस भगवान ना करे अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना पड़े तो उस सब्जेक्ट के साथ और भी अच्छा से नेक्स्ट अटेम्प्ट फाड़ दे, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो उस सब्जेक्ट में ही लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट दो, ये तो एक नंबर फैक्टर हो गया। दो नंबर फैक्टर है, हम बोल रहे हैं जे उसमें उस जो भी सब्जेक्ट ले उसमें आपका ग्रिप होना पड़ेगा, कमांड होना पड़ेगा। तो ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए आपको समझ भी नहीं आता है कुछ, साइकोलॉजी ले लीजिए। तो हम क्योंकि साइकोलॉजी हमारा बैकग्राउंड का नहीं है तो हम नहीं समझ पाएंगे साइकोलॉजी, हम जूलॉजी समझ नहीं पाएंगे, बोटानी समझ नहीं पाएंगे। तो हम अगर जो जो उसमें इंटरव्यू पैनल को एक्सप्रेस करने इम्प्रेस करने के लिए हम लोग ले लिए बोटानी, चलो देखते हैं, हम कॉमर्स का है तो बोटानी लेते लेते हैं तो इंटरव्यू पैनल पूरा इम्प्रेस हो जाएगा और हमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसे तो होने वाला नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। और आपका हालत खराब होने वाला है क्योंकि आपका कमांड नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका जानकारी होना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। हम ये बोल देंगे जो बाकी सब सब्जेक्ट में आपका ब्रॉड जाना पड़ेगा लेकिन ऑप्शनल में डीप जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ब्रॉड और डीप का बीच में डिफरेंस? ब्रॉड और डीप का बीच में डिफरेंस ये है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज होना पड़ेगा। तो किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज गैदर कर सकेंगे वही सब्जेक्ट लीजिए। विथ मैंने आपको इंटरेस्ट तो है ही, फिर आप किस सब्जेक्ट में एकदम ज्यादा एक्सपर्टाइज है उस सब्जेक्ट को लीजिए। तो जनरली इसलिए प्रीफर किया जाता है आप जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वही लीजिए। लेकिन ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे ना सोचे समझे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है, इंटरेस्ट तो नहीं होता है, ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी सब्जेक्ट लीजिए कोई भी सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस हो जे आपका उस सब्जेक्ट में कमांड होएगा, हम कॉन्फिडेंस है हमारा, तो उस सब्जेक्ट को लीजिए। ठीक है, ये हम सिर्फ दो फैक्टर, ये दो फैक्टर ध्यान में रखिए, आप अच्छा ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करेंगे। एक तो बोले हम इंटरेस्ट और दूसरा क्या बोले कमांड और ग्रिप। उसमें कमांड और ग्रिप होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कमांड और ग्रिप होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इस सब्जेक्ट के बारे में आपको इंटरव्यू पैनल भी पूछ सकता है। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर लिए तो एग्रीकल्चर का टेक्निकल चीज पूछेगा, जूलॉजी का टेक्निकल चीज पूछेगा, तो आप टेक्निकल चीज कब बता पाएंगे? जब आपका उस सब्जेक्ट पे कमांड होगा, राइट। तो उस सब्जेक्ट को ही लीजिए जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट क्यों बोले, जो आप एडजस्ट हो जाएंगे तब आप उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको मैंने जो एडजस्ट हो गया है उसको वो भी रिलीफ हो जाएगा और इंटरेस्ट तो है ही, आपको मजा तो आएगा ही। तो ये दो फैक्टर बोले जी आपका चूज करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। और क्या नहीं करना है वो फिर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस नहीं करना है, ठीक है। और आपका पॉपुलर सब्जेक्ट है बोल के नहीं लेना है, ऐसा ध्यान में रखिएगा प्लीज। तो आपको ये दोनों चीज करने के बाद आपको इंटरेस्ट भी कोई पकड़ लीजिए, दो तीन सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। हम में इसमें इंटरेस्ट भी है, हमको लगता है जो इसमें कमांड भी आने वाला है, लेकिन तब नेक्स्ट स्टेप ये दोनों फैक्टर कंसीडर करने के बाद दो तीन सब्जेक्ट्स में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ये ले ना ये ले, ये ले ना वो ले। तब आपको क्या फायदा करेगा, जे आप सिंपली क्या करिए, हम जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन देने वाले हैं और आप खुद यूपीएससी का वेबसाइट में जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। उस जो भी सब्जेक्ट चूज किए हैं आप, दो तीन सब्जेक्ट होगा जिसमें कंफ्यूज हो गए आप लोग, तो वो सब्जेक्ट का सिलेबस लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ? मिलेगा यूपीएससी का वेबसाइट में ही, प्लीज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए 5-6 साल का और सिलेबस देखिए उस सब्जेक्ट का,
तो फिर डिसाइड कीजिए जे हाँ सिलेबस में ये लिखा है ये तो हमको पता है, ये तो हमको नहीं पता है, तो आप खुद समझ जाएंगे जे अच्छा ये सब्जेक्ट हमारा लिए है कि नहीं है, तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि कोई एक साइंस का स्टूडेंट पकड़ लीजिए, वो पकड़ लीजिए जूलॉजी और बोटानी में कंफ्यूज है। ठीक है, हमको जूलॉजी भी अच्छा लगता है, बोटानी भी अच्छा लगता है, हमको दोनों में मजा आता है। तो जूलॉजी और बोटानी में वो कौन सा ले, तो उसको डिसाइड करने में उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा। जैसे कि पकड़ लीजिए कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो उसको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी अच्छा लगता है, मैनेजमेंट भी अच्छा लगता है, तो दोनों में तो एक ही लेना पड़ेगा ना सब्जेक्ट। तो एक कैसे ले, वो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस एनालिसिस में। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को खुद से एनालाइज करेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, अरे ये तो हमको पता है, तो हम लिख सकते हैं अभी। तो ऐसा ऐसा अगर लगेगा तो आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए, तब चल जाएगा। तो आप क्या बोले, हम क्या बोले, कंक्लूड कर रहे हैं, जे एक नंबर बात, जे आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वही सब्जेक्ट लीजिएगा, और 2 नंबर बात, उसमें कमांड होना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। फिर अगर आप कोई 2-3 सब्जेक्ट में कंफ्यूज है, तो आप उसका सिलेबस लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसको थोरोली एनालाइज करिए, लगने दीजिए टाइम। ठीक है, 1 महीना भी लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा एकदम क्लियरिटी के साथ। ठीक है, लेकिन आदमी कंफ्यूज होता है, 2 अटेम्प्ट देने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर देता है, तो क्या मैंने वो दो साल तो बर्बाद हो गया ना, जितना टाइम ऑप्शनल में लगाएगा वो बर्बाद हो गया ना भाई। तो इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपका रैंक दिलाएगा और ये आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये फैक्टर्स सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है आज। होमवर्क यही है जो आप लोग जाके आपका माइंड में चल रहा होगा अभी, हमारा सब्जेक्ट तो ये, हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपका माइंड में चल रहा है उसका सिलेबस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का हम दिखाना चाहते हैं आपको थोड़ा थोड़ा, हम यूपीएससी का वेबसाइट को खोल के रखते हैं। ये यूपीएससी का वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च करिएगा यूपीएससी, गूगल में जब सर्च करेंगे यूपीएससी बोल के ये साइट खुलेगा, तो आप एग्जामिनेशन में जाइएगा। एग्जामिनेशन में जाके आपको देखिए, एग्जामिनेशन में जाके आप यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें क्लिक कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2021 में जितना भी सब, सिर्फ क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज कंडक्ट सिर्फ नहीं कराता है, बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करता है, यहाँ पे सब एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो यूपीएससी का देखिए, यूपी देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस का पेपर सब है यहाँ पे। तो ये देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज का मेंस का 2020 का पेपर है, यहाँ पे देखिए कंपलसरी पेपर सब मिल जाएगा, एवरीथिंग मिलेगा इस पे। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपका क्या है, ये सब कुछ आपका क्वेश्चन पेपर है, 2020 का क्वेश्चन पेपर है। अब नीचे चला जाएगा सबका पेपर मिलेगा, ऐसे ये 4, 5, 6 में आपको 2013 तक 14 तक जितना भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया है, सब कुछ पेपर ये यूपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए आज क्या करिए, जाके आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो भी चूज करने वाले हैं उसका पहले ये फैक्टर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा एनालाइज करिए और उसको चूज करिए, और बाद में जाके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका सिलेबस को एनालाइज करिए। फिर कल को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और कोई अगर दिक्कत होगा तो हमको फोन करके पूछ सकते हैं, हमारा नंबर और आपका क्या ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, हम टेलीग्राम बोल रहे हैं, हम व्हाट्सएप में भी सेंड कर देंगे। तो आप लोग फोन कर सकते हैं। अभी कितना बज रहा है आपका, 7 से लेके 8 बजे तक हमको कॉल किया जा सकता है। तो आप लोग कोई भी डाउट होगा तो हमको पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अभी तो हम लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं, लेकिन आपको कभी फिर से डाउट होगा तो हमको कॉल करके पूछ सकते हैं 7 to 8। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, सिलेबस मिलेगा कहाँ, यूपीएससी का नोटिफिकेशन में, जो हम आज व्हाट्सएप में अभी अभी डालने वाले हैं, और आप खुद भी यूपीएससी का वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, यूपीएससी का वेबसाइट में। और दूसरा काम है जी, आपको पीपीटी रिवाइज करना है, ये जो पीपीटी है जो पैटर्न के बारे में बोले हैं, और आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको जो बोला जाएगा आप लोग रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप फ्यूचर सिविल सर्वेंट से, तो आप लोग को जो बोला जाएगा वो करेंगे, हमारा वो भरोसा है। ठीक है, फिर अभी अभी आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपका अभी पूछिए।
स्पीकर से पूछिए, चैट में हमको दिक्कत होता है तो। हेलो अमित सर। या बोलिए। सर मेरा जो क्वेश्चन है, सर हम्म, 10th का बाद से मैं अब तक जियोग्राफी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा है, लेकिन मुझे उस सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और मैं अगर फ्यूचर में, मैं फिलहाल अभी आर्ट्स में हूँ, लेकिन मैं अभी दूसरा मेजर में हूँ बीए पे। अगर मुझे फ्यूचर में अगर एमए करना भी है तो मैं जियोग्राफी में या फिर लॉ में करना चाहूंगा। तो क्या मैं अभी जियोग्राफी या फिर लॉ के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ ऑप्शनल में? क्या ऑप्शनल के लिए? हाँ। तो ऑप्शनल हम क्या बोले, जो दो फैक्टर को कंसीडर करिए। आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में तो इंटरेस्ट है तो लीजिए। और प्ले प्लस आपको आपको अगर लगता है जो ज्योग्राफी में हमको कमांड बना बना सकेंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हमारा नॉलेज गैदर कर पाएंगे और हम जो भी पूछा जाएगा ज्योग्राफी में हम कर पाएंगे, तो लीजिए, एकदम सही सही डिसीजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जी आप एकदम। दो फैक्टर को प्लीज। जो सिलेबस जो है जियोग्राफी का वो मैंने आज अच्छा से स्टडी किया, और एज वेल एज लॉ का भी। लेकिन जियोग्राफी का मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ अभी तो वो यही लीजिए कंफ्यूजन था। आप। वो आपका ऊपर छोड़ दिए, ऐसा नहीं पूछिए जे आप हम बोल दीजिए आपको क्या सब्जेक्ट ले, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो आप खुद डिसाइड कीजिए जे आपको ज्योग्राफी लेना हो पड़ेगा ना लॉ लेना पड़ेगा, ठीक है? वो चूज तो ले करना पड़ेगा आपको। ओके। और एक और क्वेश्चन था, बोलिए। जैसे कि आपने बोला लक फैक्टर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। और हम्म। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर क्या हम ये भी मान के चल सकते हैं कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, उस हिसाब से अगर हम लोग ऐसा ऑप्शनल भी क्या चूज कर सकते हैं हम्म। जिसका फायदा अगर हमें फ्यूचर अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करे, जैसे कि लॉ अगर हम लोग नहीं ऑप्शनल नहीं। चुनते हैं, ये नहीं तो होगा? नहीं, हम बोले ना, जैसा ऐसा मत सोचिए जे आपको सर्विस में जाके आप इन फ्यूचर दूसरा कुछ जाके जॉब में हेल्प करेगा। हमको ये गलत चीज लगता है, क्योंकि ये अगर करिएगा तो आपको फ्यूचर का, अभी एग्जाम का बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो आपको अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम लोग सिविल सर्विसेज का बात, जिसमें जिसमें इंटरेस्ट होगा वही लीजिए, क्योंकि आप नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप। हम जो फिर से रिपीट करने वाला बात हो गया, तो ऐसा मत कीजिए। फिर भी आपका ऊपर है, आपको जो सही लगता है वही कीजिए, क्योंकि आप तो ऑफिसर बनने वाले हैं ना, तो हर एक ऑफिसर का अप्रोच अलग अलग होता है। हम जो स्टैंडर्ड चीज है वही बोले। ओके। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट कोई दूसरा कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग। क्या कुछ तो लोग कहेंगे बोल के नहीं अमित पूछ रहे सर। क्या? हाँ बोलिए। सर मैं शुभंकर बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। ये आपका जो मेंस या जो प्रीलिम्स में क्या मैथ्स के टाइप कुछ कोई का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है क्या, मैथ्स नहीं टाइप? नहीं नहीं नहीं, आपका ऊपर ऑप्शनल में मैथ्स है तो अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो दूसरा, अगर मैथ्स रिलेटेड ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। लेकिन जनरल स्टडीज में नहीं पूछा जाता, मैथ्स से कोई चीज नहीं आता है। थैंक हम यू। लोग डिस्कस भी करेंगे सिलेबस, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा। ठीक है, कल को डिस्कस करेंगे हम लोग क्या क्या होता है, जीएस पेपर वन में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। थैंक यू सर। और एक ओके। बात आपको बोलना था, आपका जो कल का मतलब कल आपने जो होमवर्क जो दिया था, सो इट इज वेरी नॉलेजेबल होमवर्क, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मतलब थैंक यू। जो वो कहता है ना कि जो हर सिक्के में दो पहलू होता है, हेड या टेल। तो आपका हाँ। जो पहला वीडियो वो आपका हेड था, और जो दूसरा वीडियो वो आपका टेल था। मैम का वीडियो में हमने हेड के बारे में जाना, और सर का वीडियो में टेल के बारे में जाना, कि तो पहले हम बनना यही कैसे चाहते है थे, और हमको बनने के दो बाद पिक्चर कैसे काम दिखाए। गुड गुड गुड, आप समझ गए। हम यही चाहते हैं जो दो पिक्चर दिखाए, एक पिक्चर में गुड होता है, एक पिक्चर में बैड होता है, हर लाइफ का हर एक चीज में अप्लाई होता है। सुमंकर। करना। वही वही कि एक थैंक बार यू। बनना कैसे और बनने के बाद किस तरह से क्या? काम कर वो सबसे गुड। इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हाँ राइट। क्योंकि एक बार बनने के बाद क्या मतलब कि एक बार क्या होता है कि लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशन मतलब कि जो मतलब बहुत होता है। आपके गांव के लोग हो सकता है, आपके फैमिली के लोग हो सकता है, और रंगापरा कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन की लीडर होने के नाते तो मीन्स आई हैव द प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑन दैट। एक बार बन थैंक यू गया तो और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। थैंक यू। सर सो ओके थैंक ओके, यू सो आप मच। बनिए, यही वही वो है, इच्छा थैंक यू है सो अपना। मच। ठीक है ठीक है। मणिकंकना मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक्चुअली थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम आप लोग से ही मोटिवेटेड है हम लोग। মানে আপোনাৰ হালৈ ছাৰৰ, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ, তাৰিয়াং ছাৰৰ কামবোৰ চাই মোৰ মানে এনেকুৱা ভাল লাগে। মই মানে আপোনালোকৰ পৰাহে মটিভেটেড মানে। তো এইবোৰ আপোনালোকৰহে দান মানে।
তো আৰু মই যিমানেই কৰিম যিমান কামেই কৰিম সেইটো আপোনালোকৰহে আশীৰ্বাদ হ'ব थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमको चैट में पूछे हैं प्लीज अगर आप पूछ लेंगे जल्दी तो हमको आसानी होगा रिप्लाई करने में क्योंकि चैट बहुत हमारा स्क्रीन में छोटा आता है तो पढ़ने में दिक्कत होता है हमको So there is a question from Susmita Devna. Prelims में MIL যদি বেংগলী লওঁ তেনেহলে মেইনছত অপচনেল সাবজেক্টটো বেংগলীত লোৱা যাব নেকি? প্ৰিলিমছত আপোনাৰ ল'ব পাৰিব একো নাই প্ৰিলিমছত যদি তেওঁ বেংগলীত টিক কৰে বস্তুবোৰ তো তেতিয়াহ'লে মেইনছতো অকল যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সুস্মিতা দেৱনাথ যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেওঁ তেতিয়া তুমি অকল তাত টিক কৰিব লাগিব যে মোৰ যিটো ছাবজেক্ট হ'ব মোৰ যিটো লেংগুৱেজ হ'ব কথা কোৱাৰ বা লিখাৰ সেইটো বেংগলী হ'ব আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা সেইটো কথা হয় আৰু অপশ্যনেলত যদি লিখা মানে গোটেই মেইনছৰ গোটেইখিনি পেপাৰ আপুনি বেংগলীত লিখিব লাগিব ঠিক আছে গোটেইখিনি পেপাৰ বেংগলীত লিখিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মানে এইটো থাকিব প্ৰিলিমছ মেইনছ দুটাই বেংগলীত লিখিব লাগিব আৰু মানে মেইনলি মই কি ক'ব বিচাৰিছো এটা ছাবজেক্টে হ'ব পাৰে সৰি এটা লেংগুৱেজে হ'ব পাৰে যদি ইংলিছ চুজ কৰিছে গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট ইংলিছত লিখিব লাগিব প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত আৰু আপোনাৰ যদি বেংগলী চুজ কৰিছে 22টা লেংগুৱেজ আছে তাৰ ভিতৰত যিকোনো চুজ কৰিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই সেইটোৱে সুবিধা ইয়াত Questions from Mondol. सर एससी के लिए कट ऑफ कितना चाहिए? तो डिपेंड करता है राहुल जे आपका एसटी का लिए ऑब्वियसली कम होता है थोड़ा इतना भी ज्यादा कम नहीं होता है जे आप 50-60 पाए तो ऐसे आसपास ही रहता है 10-12 मार्क्स का डिफरेंस होता है आप एक बार कट ऑफ एनालाइज कर लीजिए आपका नेट में मिल जाएगा कितना एसटी के लिए होता है कितना ओबीसी के लिए होता है लेकिन हम इतना ही देखे हैं जे ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस होता है आप ऐसे हम जितना देखे हैं आपका 90 मार्क्स जैसा होता है कट ऑफ एसटी 80 to 90 का बीच में वेरी करता है There is another question from Momita Dutta. Sir, what is the importance of coaching for the preparation? Amit, I think your band is low. Amit, I am repeating again. What is the importance of coaching for the preparation? Actually, যিটো importance of coaching actually Momita that importance of coaching which coaching should be taken or not I will discuss about it in the upcoming sessions please wait for that and we will talk about that in detail okay because everyone has that question जे कोचिंग लेना चाहिए कोचिंग नहीं लेना चाहिए कोचिंग लेने का क्या एडवांटेज है कोचिंग नहीं लेने का एडवांटेज क्या है तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका बारे में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मोमिता So there is another question from Nancy Rao. Sir, GS paper 1 का मिनिमम कट ऑफ कितना होता है? वो डिपेंड करता है हम पहले भी बोले हैं जो डिपेंड करता है आपका कास्ट क्या है तो कास्ट अगर जनरल है तो आपका कट ऑफ और ये 2 नंबर बाद वेरी भी करता है ईयर टू ईयर तो कभी भी कट ऑफ 120 का ऊपर भी चला जाता है कभी भी कट ऑफ आपका 90 का आसपास भी रहता है जनरली 2-3 साल से ये देखा गया है जो आपका जीएस पेपर 1 का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो 100 का आपका 90 से 100 का बीच में है ठीक है आप लोग कोशिश करिए जे कट ऑफ का पीछे मत पड़िए प्लीज कट ऑफ का पीछे मत पड़िए आप लोग कोशिश करिए जे आपका जो जीएस पेपर 1 है प्रीलिम्स का उसमें 120 प्लस मार्क्स लाना है तो अगर 120 प्लस मार्क्स लाएं तो आपको कोई भी कास्ट का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे कोई भी कास्ट का ठीक है आपका टारगेट होना चाहिए जो 120 प्लस मार्क्स लाना है क्योंकि अभी तक यूपीएससी का उसमें हिस्ट्री में 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है उससे कभी भी 120 का प्लस कट ऑफ नहीं गया है तो आपका टारगेट होना चाहिए जब भी आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है कोई नहीं है तो जब भी आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे आप लोग का कोशिश ये होना चाहिए कि हम 120 प्लस स्कोर करें तो आप अगर 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में आप मेंस देने वाले हैं ठीक है तो 120 plus score is the cutoff for you because this cutoff is not beaten by anyone okay तो
ये मत समझिए जी आपका इसका कट ऑफ क्या होगा उसका कट ऑफ क्या होगा, आप 120 प्लस आपका कट ऑफ है, क्योंकि ये कट ऑफ बीट नहीं होता है कभी भी। और ऑब्वियसली इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है, 140 प्लस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, क्योंकि उसका उसका प्रीलिम्स का मार्क्स भी जोड़ा जाता है आपका फाइनल सिलेक्शन में। लेकिन सिविल सर्विसेज का ऐसा नहीं होता है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, इसलिए इसलिए उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बात करें। Okay. So there is a question from Himangsu Soikia. Hmm. Prelims examination is conducted in how many mediums, sir? Like English, Hindi. Is there Assamese medium paper for prelims? आई थिंक यस, बट हम एक बार देख लेंगे, फिर हम कल को इसका बारे में बोलेंगे। तो लेकिन हमको लगता है कि यस आपका दूसरा सब लैंग्वेज में भी होता है, क्योंकि मेंस जो होता है, मेंस तो हर 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल लैंग्वेज है, शेड्यूल 8 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शेड्यूल 8 का जो 22 लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। आई थिंक सो उस लॉजिक का बेसिस पे हमको लगता है ये प्रीलिम्स का भी जो एग्जाम है वो भी 22 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, लेकिन हम इस बात को क्लियरिफाई वेरीफाई करके बोलेंगे, ठीक है। So there is another question from Praveen. It's a personal question to you. Amit sir, what is your optional subject? हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, लेकिन हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हम वही इंटरेस्ट और आपका कमांड का ऊपर बेस करके डिसाइड किए है। तो हर एक आदमी का लिए कमांड और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। तो हमरा ऐसे जानने के लिए जान लीजिए जे ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, मेरा बैकग्राउंड भी रहा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू। So there is another question, kind of a appreciation as well as a question. ओके Dr. Kishore, hello. ओके Hello, Amit. Feel very proud to hear you. Wish you the best of luck for your preparation. I have one question: how to be motivated and determined in every single day for the long run? স্যাৰ একচুৱেলি মই এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কালি অলপ দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যদি সেই মটিভেশ্যন, ডেডিকেশ্যন আৰু আপোনাৰ যি কয় আৰু আপোনাৰ ডিচিপ্লিন যিটো দৰকাৰ আছে আমাৰ লং ৰানৰ কাৰণে, সেই লং ৰানৰ যিটো মটিভেশ্যন, ডেডিকেশ্যন, সেইটো আহিব হোৱাই ফেক্টৰৰ পৰা ছাৰ। আমি যদি লাইফত ক্লিয়াৰ হওঁ আমাৰ কি কৰিব লাগে একচুৱেলি, আমি কেলে মই যেনেকে চিভিল চাৰ্ভিচেছ দিব বিচাৰোঁ, IAS হ'ব বিচাৰোঁ, তো মই মোৰ যদি সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰ থাকে, মই কেলে IAS বনিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে সেইটো যদি সেই ফেক্টৰটো ক্লিয়াৰ থাকে, ৱাই যদি ক্লিয়াৰ থাকে, দেন মটিভেশ্যন, ডেডিকেশ্যন সকলো বস্তু তাৰ পৰাই আহিব বুলি ভাবোঁ মই। তো মই ভাবোঁ যে হয় কি কয় মটিভেশ্যন, আৰু ইন দ্য লং ৰান ছিংগল ডেৰ কাৰণেতো সদায় চবে মটিভেট থাকিব নোৱাৰে, আমিও হিউমেন বিং হয় ছাৰ। তো আমাৰো কেতিয়াবা ল' ফেজ আহে, তো হিউমেন বিঙৰ ল' ফেজ আহিবই। তো সেইটো টেকেল কৰিব লাগিব, কিন্তু হৰ এক ছিংগল ডে মটিভেটেড থকা পচিবল নহয়, আমি হিউমেন বিং হয়। তো কিন্তু যেতিয়াও মটিভেটেড হওঁ, আমাৰ সেই ফেক্টৰটো, ৱাই ফেক্টৰটো আমি মনত পেলাব লাগে যে হয় মই কেলে কি কাম কৰি আছোঁ, মই কেলে আছোঁ এই পৃথিৱীখনত। তো সেই ফেক্টৰটো যদি আমাৰ মাইণ্ডত ক্লিয়াৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মেক্সিমাম টাইম, নট ছিংগল ডেটো নকওঁ, কিন্তু আমাৰ লাইফৰ মেক্সিমাম টাইম আমি মটিভেটেড থাকিম, সুখী থাকিম, আমাৰ কাম কৰি থাকিম আমি নিজে নিজে, ডিমটিভেটেড নহওঁ মানে। আৰু ডিমটিভেটেড হ'লেও বহুত জলদি ৰিকভাৰ কৰিম মানে ছাৰ, মই সেইটো বুলি ভাবোঁ ছাৰ। আৰু I think that there is no question left now. Okay. So everybody is thanking you. Anyway, probably we can just end the session here. Yeah. Okay, किसी so को अगर आई एम कंक्लूडिंग सर, अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो अभी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमको कॉल किया जा सकता है। मेरा नंबर हम आपका उसमें व्हाट्सएप में दे देंगे, और जो भी होमवर्क करने बोले प्लीज करके आइएगा, प्लीज 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 प्लीज। ओके, और आप लोग UPSC एस्पिरेंट है 7 दिन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा रहेगा, कुछ रहेगा। So what about the yesterday's homework? वेस्टरडे होमवर्क सर जैसे कि सुमंकर दे बोला वो तो किए हैं, लेकिन जो भी यस्टरडेज का होमवर्क किए होंगे तो उसको पता चलेगा जे नहीं, और अगर कोई नहीं किए होगा तो वो सर UPSC एस्पिरेंट नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, तो ही बोलेंगे हम। So who have done it, just kindly chat it that you have done the homework. So I think we'll know that you have really done the homework.
and who are yet to do it, so just try to finish today's homework and yesterday's homework also, so that you'll enjoy the meaning of this UPSC exam. So there was an announcement that today's we have also another feedback session. So kindly fill up the feedback session. Form is there given in the chat box. So it went a little bit ahead. Anyway, you can just scroll up and then you can see it. And again, we have also uploaded the registration form who have not done the registration. And number 3, that yesterday's entire video has been uploaded in a YouTube. So one can see the yesterday's presentation, complete presentations of Amit Biswakarma who have missed it. So, or you can just get a refreshment again of the presentation. And today's presentation will also be uploaded maybe by tomorrow morning. So this is an announcement to you all. Okay, then with all the best, and tomorrow we'll meet again. But tomorrow the time of the webinar will start at 5:30, not at 5, because we have some other program which is going to start from 3 to 5. So we'll take a half an hour break and then we'll again have to start. So for that only we are starting the program tomorrow at 5:30. So kindly note it down. Okay, thanks. So we are just winding up this.